Assalamu alaikum everyone. Today we're going to have the first lecture on the political science paper 2, and formally we're going to start with the powers of the American president. So it's important when we're discussing the powers of the American president that we are discussing in the context of how the power operates in the United States. So the power in the United States operates under the concept of checks and balances, and for this I would refer you guys to look at the video that we talked in political science 1 regarding separation of powers and checks and balances, ताकि आप दोबारा से आपकी एक दफ़ा रिविजन हो जाए कि हम किस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं. एनीवेज हम सेपरेशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर एक पूरी वीडियो भी बाद में करेंगे जिसके ऊपर हम इस सारी आइडियाज़ को समराइज करेंगे. लेकिन ब्रॉडली चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्विकली रिव्यू दूं तो वो यही है कि डिफरेंट ऑर्गन्स यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, पावर्स इन तीनों में डिवाइडेड इस तरीके से हैं कि दे कैन कीप ईच अदर एट चेक. सो व्हेनेवर एग्जीक्यूटिव ट्राइज टू transgress from its powers, judiciary can check it, and whenever legislature tries to do that, executive can, and every organ has a check on every other person. So इसी तरीके से अब आपने ये बात जहन में रखनी है और फिर पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ सेनेट, इन चीज़ों को इवेलुएट करना है. और आप ये देखेंगे आगे कि पावर्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं, कि कुछ पावर प्रेसिडेंट को दी गई है पार्शली, उसके मुकाबले में कुछ पावर कांग्रेस को दी गई है, कुछ पावर जुडिशरी को दी गई है. सो विल सी दैट एज वी मूव अलोंग विद द अमेरिकन सिस्टम. इट्स रादर हॉट हियर in the studio. Anyways, so starting this is can be your introduction के जहाँ पर basically अमूमी तौर पे ये consider होता है कि I'm going to use POTUS, President of the United States, as a short form for President, and I'm going to use SCOTUS, Supreme Court of the United States, for the short form. So President of the United States is considered to be very powerful because United States is a superpower. In fact, it is the most powerful superpower to have ever existed in human history in terms of its military and technological and economic power and might. Hence, ipso facto, President of the United States is generally considered to be one of the most powerful head of the state or the political leader in the world. But a careful observation of this would reveal that this is not true. American system of checks and balances greatly limit American president's power. This is one of the quotations from Lord Price of the United Kingdom. And as I discussed earlier, that US president's power is limited in many ways, and founding fathers envisaged a system of limited government with a strong system of checks and balances. Why did the founding fathers not want a very strong president, an all-powerful president? Because founding fathers fought with Britain in American Revolutionary War. आप में से जिन्होंने यूएस हिस्ट्री रखी है उनको तो बेहतर अंदाज़ा होगा, और जिनको नहीं है तो वो थोड़ी सी इस पे सर्च कर लें कि अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के अंदर जब बरतानिया से आज़ादी हासिल की अमेरिका ने, तो फाउंडिंग फादर्स जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, हैमिल्टन, मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, they were against the system that Britain had, where there was a very powerful monarch और जहाँ पर subjects powers की limitations और checks and balances नहीं थे. So they did not want to create an office of president who could become an autocrat, an all-powerful president like that in British monarchy. They did not want American president to become a king-like figure. Hence, they limited his power by the countervailing influences of Congress and judiciary. हिस्टोरिकली जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट की पावर्स काफ़ी लिमिट की थी, फाउंडिंग फादर्स ने जिस तरीके से इन्वेस्ट किया था, मगर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम प्रेसिडेंट की पावर्स उस ओरिजिनल पावर से काफ़ी एक्सपैंड कर चुकी हैं. इवन दो अभी भी in many ways they are limited, but they're still expanded compared or relative to what it was originally envisaged in the Constitution of the United States. किस तरीके से इसकी पावर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट की इन्हांस हुई हैं? जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्विटी थी, वहां वहां सुप्रीम कोर्ट ने
प्रेसिडेंट की पावर्स एनहांस की, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल ऑफिशियल्स की पावर, तो ये थी कि जो हम आगे पढ़ेंगे भी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फेडरल ऑफिशियल्स को और सेनेट उसको अप्रूव करती है, लेकिन रिमूव कैसे करेंगे फेडरल ऑफिशियल्स को, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स के जरिए बहुत सारी पावर्स इस तरीके से, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं था कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास है या नहीं है या किसके पास है, वो पावर प्रेसिडेंट को दे दी। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कांग्रेस ने भी कुछ पावर्स प्रेसिडेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्प्लीकेशन के जरिए असाइन कर दी, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की पावर्स आहिस्ता आहिस्ता इन्हेंस हो गई। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी है कि 1933 के अंदर गोल्ड कंटेंट रिड्यूस करने की पावर प्रेसिडेंट एफडीआर को दी गई, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था और इकोनॉमिक रिसेशन था। और ओवर टाइम थ्रू यूजेस एंड कन्वेंशंस पावर्स इंक्रीज की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉडली अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स ये 4 तरह की हैं। सॉरी, executive powers, legislative powers, financial powers, and judicial powers. Now, as far as executive powers is concerned, he is considered to be the chief administrator. He is the head of the state, which means that all executive decisions are taken under his name. दुनिया मुल्क में कोई भी एक्शन, executive action लिया जाता है, वो उसके सिग्नेचर के नीचे लिया जाता है। लॉज को वो एग्जीक्यूट करवाता है, डिसीजंस ऑफ द कोर्ट को वो इम्प्लीमेंट करवाता है। वो मुल्क की नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, जिसका मतलब है कि कैबिनेट का वो हेड होगा, ताकि जितने मिनिस्टर्स हैं जो कि अमेरिका में तो जनरली सेक्रेटरीज उन्हें कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी, इस तरीके से उनको कैबिनेट मेंबर्स को वो हेड करता है, जो कि ऑफिस में रहते हैं एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड विद देयर वर्क. That generally does not happen in parliamentary systems, but presidential systems may, you will remember from the theory in that we discussed in the Pol Sci 1, in presidential systems, president is the boss of the cabinet. He can appoint anyone to the cabinet and he can disseminate them at will. And cabinet members in presidential systems need not be part of parliament. तो वो ज़रूरी नहीं कि वो मुकन्ना का लेजिस्लेचर का हिस्सा हो कैबिनेट मेंबर्स, प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एज कैबिनेट मेंबर और उनको कभी भी रिमूव कर सकता है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, क्योंकि ये सारे जो कैबिनेट होती है वो इफेक्टिवली फिर पूरी एग्जीक्यूटिव मशीनरी को चलाते हैं। एक बहुत बड़ी पावर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनली अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ. He is the supreme commander of the armed forces and hence by that he is responsible for defense. He appoints military officers with the consent of the Senate. अब यहां पर आपको चेक्स एंड बैलेंसेस नजर आते हैं कि कैसे वो अपॉइंट तो कर सकता है मिलिट्री ऑफिशियल्स को, लेकिन वो अपॉइंटमेंट अप्रूवल ऑफ द सेनेट से होगी। तो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से डिवाइड किए हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। मगर जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज़ों पे साइलेंट था, जैसे कि वो ऑफिशियल्स को अपॉइंट तो कर सकता है कंसेंट ऑफ द सेनेट से बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं लिखा था कि उनकी रिमूव करना हो इन ऑफिशियल्स को, मिलिट्री ऑफिशियल्स को, तो क्या किया जाए। इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कहा कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जब मर्जी उन्हें रिमूव कर सकता है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसे सेनेट की मर्जी चाहिए, रिमूवल के टाइम पे उसे सेनेट की मर्जी नहीं चाहिए। इन थ्योरी पावर टू डिक्लेयर वॉर डिक्लेरेशन जो है वो कांग्रेस के पास, पार्लियामेंट के पास उनकी ये इख्तियार है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट ये डिसाइड करते हैं कि वॉर डिक्लेयर करें, लेकिन पावर टू टर्मिनेट वॉर एक्सक्लूसिवली रेस्ट विद द प्रेसिडेंट, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के मुताबिक बिल्कुल वही प्रिंसिपल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि पावर्स ओवर टाइम इंक्रीज की गई हैं। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल के at least on 125 occasions the president has acted without prior express military authorization from Congress. This shows how much powerful president can be at times. और ये एग्जांपल्स मैंने इसीलिए ये कोट किए हैं कि फिलिपीन अमेरिकन वॉर में, निकारागुआ में, पुलिस एक्शन कोरिया अंडर ट्रूमैन, यूगोस्लाविया में जो नेटो बॉम्बिंग कैंपेन हुई थी, इसमें विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस ही प्रेसिडेंट ने यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन किया था।
in response to terrorist attacks, because terrorism is something that is a recent phenomenon not envisaged by the constitution originally, तो प्रेसिडेंट को बहुत ब्रॉड पावर्स मिल चुकी हैं अब टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स। ये बेसिकली 9/11 के बाद प्रेसिडेंट को बहुत पावर, इन्हांस्ड पावर्स कांग्रेस ने खुद दी थी। इन पावर्स के मुताबिक प्रेसिडेंट कैन नॉट ओनली डिप्लॉय मिलिट्री फोर्स प्रीएम्प्टिवली अगेंस्ट एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और से सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द अटैक्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। किसी भी शख्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रियासत जो यूएस समझता है कि यूएस के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस है, प्रेसिडेंट उनके खिलाफ मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है, वो भी प्रीएम्प्टिवली, यानी उनके एक्शन लेने से पहले ही। अगर अमेरिका को सिर्फ ये पता हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी करने का प्लान कर रही है या कर सकती है, तो कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो पहले ही उनके खिलाफ एक्शन कर सकता है। Not just against them, but also against foreign states suspected of harboring such organization, such as, जिसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हैं अभी रिसेंट इराक और ईरान के साथ जो जनरल कासिम सुलेमानी वाला इंसिडेंट है, it could be a recent example that you could quote where they took that decision, where the president took that decision and Congress had no say in that. ये जो पावर्स थी, ये बेसिकली कांग्रेस ने वॉर पावर रेजोल्यूशन और जॉइंट रेजोल्यूशन पास की थी सितंबर 14, 2001 में इन रिस्पांस टू द 9/11 अटैक्स, टू ट्विन टावर अटैक्स के रिस्पांस में प्रेसिडेंट को टेररिस्ट अटैक से डील करने के लिए मिलिट्री पावर्स बहुत ज्यादा इन्हांस्ड मिल गई थी बाय कांग्रेस। more executive powers. He has some powers in foreign relations as well. He represents US in foreign relations. He formulates the foreign policy of the United States. जितने diplomatic representatives हैं, for instance, representative US is representative to United Nations, to World Trade Organizations, to NATO, to other countries, counselors, ambassadors. जितने US के diplomatic representatives हैं to foreign states, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद द कंसेंट ऑफ द सेनेट। अगेन चेक्स एंड बैलेंसेस नजर आ रहे हैं हमें। ही कैन निगोशिएट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद द फॉरेन स्टेट्स इन हिज डिस्क्रेशन। प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो जब किसी दूसरे मुल्क गया तो अपनी डिस्क्रेशन पे वो किसी के साथ कोई भी मुआहदा साइन कर सकता है, लेकिन उस मुआहदे को तब तक लीगली वजूद में नहीं आएगा जब तक सेनेट उसको रेटिफाई नहीं करती 2/3 मेजॉरिटी से। यानी 2/3 मेजॉरिटी उसकी वोट फेवर में जब तक वोट नहीं करती तब तक वो ट्रीटी मंजूर नहीं होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ओबामा ने न्यूक्लियर डील, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खोले को क्यूबा के साथ, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ये तीनों एग्जांपल्स हैं ऑफ द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट वेयर प्रेसिडेंट डिड समथिंग रिमार्केबल। यानी न्यूक्लियर डील was a huge step forward, diplomatic relations opening with Cuba after decades was a huge step forward, Paris Climate Accord was a huge step forward, and president did that. So it shows that president has certain degree of power in foreign relations, but at the same time this power is limited by checks and balances कि ये सारी foreign negotiations सेनेट की 2/3 मेजॉरिटी को अप्रूव करना जरूरी है। एंड माइंड यू, ज्यादातर यहाँ पर सेनेट का जिक्र होगा, मैं केयरफुली अपने अल्फाज को चुनता हूँ कि सेनेट और कांग्रेस तो अलग-अलग चीजें हैं। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस कंसिस्ट्स ऑफ द लोअर हाउस, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपर हाउस इज सेनेट। तो जब यहाँ पर मैंने अप्रूवल की बात की तो हम पूरे कांग्रेस की बात कर रहे थे। जब यहाँ हम सेनेट की बात करें तो इसका मतलब ये सिर्फ अपर हाउस की पावर। पूरा टॉपिक भी कवर करेंगे कि यूएस सेनेट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपर चेंबर्स इन द वर्ल्ड। बहरहाल ये फॉरेन रिलेशंस में पावर्स हैं। पावर्स इन अपॉइंटमेंट्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि यूएस तकरीबन तमाम तरह की जो है अपॉइंटमेंट्स, सीनियर अपॉइंटमेंट्स, मेंबर्स ऑफ कमीशन, वेरियस कमीशंस, मेंबर्स ऑफ आपके मिलिट्री ऑफिशियल्स, आपकी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, और आपकी इवन जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी सारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसके अंदर एक वही बात कि कंसेंट ऑफ द सेनेट ज़रूरी है। अगेन हमें चेक्स एंड बैलेंसेस नज़र आते हैं। यूएस के अंदर जो सर्विसेज हैं, सिविल सर्विस है, उसको सुपीरियर सर्विस और इन्फीरियर सर्विसेज में डिवाइड किया गया है। इन्फीरियर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस रूल्स तो प्रेसिडेंट अकेले ही सारे के सारे अपॉइंट कर सकता है, मगर जो कुछ सुपीरियर सिविल सर्विस की पोजीशंस हैं वो कंसेंट ऑफ द सेनेट, सीनियर अपॉइंटमेंट्स जो हैं एफबीआई वगैरह, ये वो इनकी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द सेनेट करता है। लेकिन रिमूवल का राइट ऑफ ऑल द अपॉइंटमेंट्स
इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी, अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट करता है, मगर ये सारी अपॉइंटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द सेनेट, ठीक है। मगर इनको रिमूव करने का राइट प्रेसिडेंट के पास है। सो प्रेसिडेंट फेडरल ऑफिशियल्स, यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉरेन कंट्रीज या मिलिट्री ऑफिशियल जितने अपॉइंट करता है विद द कंसेंट ऑफ द सेनेट, अगर उनको रिमूव करने की बारी है तो प्रेसिडेंट यूनिलैटरली अपनी मर्जी से कर सकता है, उसको सेनेट की अप्रूवल नहीं चाहिए। एक्सेप्ट जजेस ऑफ द फेडरल जुडिशरी के, ऐसा नहीं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में एक जज को लगाया और फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उसको रिमूव करे, या मेंबर्स ऑफ वेरियस कमीशंस अपॉइंटेड सिविल सर्विस रूल्स, इनको वो रिमूव नहीं कर सकता। इनका एक पूरा वो प्रोसीजर है कि उनको सेनेट ही इम्पीच करेगी। कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। उसके पास सबसे पहली तो वीटो पावर है। जब प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल पास होके आता है, कांग्रेस से कोई भी वोट 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं किसी भी बिल को, यानी कि वो बिल पास होके आता है, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो वो उस पर अपने साइन करके उसे असेंट कर दे उस बिल को, यानी उसको अपनी अप्रूवल दे दे, फिर वो बिल एक्ट में बदल जाएगा और वो यानी कि वो लॉ में तब्दील हो जाएगा। जब तक एक कानून सिर्फ पार्लियामेंट में मौजूद होता है, कांग्रेस में मौजूद होता है, उसको बिल कहते हैं। जब वो पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो वो एक्ट लॉ बन जाता है। या प्रेसिडेंट उसे वीटो कर सकता है, और वीटो करने के 2 तरीके हैं। एक आसान सिंपल वीटो, वो वीटो ये वीटो है कि वो बिल जो उसके पास आया है वो उसे वीटो कर दे और हाउस को वापस भेज दे वो बिल विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। वो चाहे तो अपनी अमेंडमेंट्स ऐड करके बीच में भेज दे रिकमेंडेड, या विदाउट अमेंडमेंट्स उनको भेज दे। जब एक बार प्रेसिडेंट ने एक बिल वीटो करके दोबारा से कांग्रेस के पास भेजा है, तो कांग्रेस या तो ये कर सकती है कि दोबारा उस बिल को सिंपल पास करे और प्रेसिडेंट के पास भेजे, और प्रेसिडेंट उसे अगेन या तो पास करके एक्ट बना दे या दोबारा उसको वीटो कर दे। अगर कांग्रेस चाहती है कि वो प्रेसिडेंट के वीटो को ओवरराइड कर दे, कि इवन दो प्रेसिडेंट ने वीटो किया लेकिन वो उसको उसी हालत में पास करें, तो फिर कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी इन ईच हाउस चाहिए ताकि वो उस बिल को रीपास कर सके, वरना वो बिल पास नहीं होगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी लेना अमूमी तौर पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पार्टी की भी अच्छी खासी सीट्स होती हैं, या सेनेट में होंगी अपर हाउस में, या लोअर हाउस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होंगी, तो कहीं ना कहीं वो 2/3 बैलेंस मेजॉरिटी वाला बैलेंस नहीं रहता दूसरी पार्टी के पास, और वो बिल पास नहीं हो पाता जो कि प्रेसिडेंट नहीं चाहता कि पास हो। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के पास बड़ी अच्छी वीटो पावर एग्जिस्ट करती है। इसकी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास है कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन के ओबामा ने वीटो किया था, जिसके ऊपर कंसर्न थे कि ये इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं यूएस के अंदर, उनके राइट्स को। तो दैट्स वन रेगुलर वीटो। The second is the pocket veto. Now this is very interesting. This basically is कि अगर कांग्रेस ने एक बिल पास किया है और वो बिल प्रेसिडेंट के पास आया है अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट ना उस पर अपने दस्तखत करता है, ना ही उसको वीटो करता है, और उसको अपनी टेबल पे, अपनी जेब में, अपने डेस्क पे पड़ा रहने देता है। सो ही डजंट डू एनीथिंग। और 10 दिन से पहले, जब यानी प्रेसिडेंट के पास वो बिल आया, उस बिल के आने के, प्रेसिडेंट के पास होके आने के बाद 10 दिन से पहले कांग्रेस का सेशन खत्म हो जाता है, कांग्रेस एडजर्न हो जाती है। फॉर वट एवर रीजन कांग्रेस नहीं कंटिन्यू करती अपना सेशन 10 दिन से ज़्यादा, वो 10 दिन से पहले एडजर्न हो जाती है, तो ये समझा जाएगा कि वो बिल वीटो हो चुका है। अगर बहरहाल इसके बरअक्स अगर कांग्रेस अपने 10 बिल प्रेसिडेंट के पास भेजने के 10 दिन बाद तक इन सेशन चलती रहती है, तो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो या तो असेंट करे या वो उसको वीटो करे। उसके ऊपर फिर बाइंडिंग होगा कि वो इधर ऑफ द टू काम करे। दिस इज बेसिकली अ वे टू मेजर कि कांग्रेस कितनी सीरियस है इसके बारे में, और क्या कांग्रेस ने बिल देने के बाद अगर 10 दिन से पहले अपने आप को एडजर्न कर लिया, यानी खत्म कर दिया अपनी प्रोसीडिंग्स को फॉर टाइम बीइंग, इसका मतलब कि वो उस बिल पे इतना कंसिडरेट नहीं थे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पावर। Lincoln used this against Wade Davis bill in 1864. It's an example that you should quote as a separate heading. मैंने इसके एंड में लिंक्स अटैच भी करती हैं इन द वीडियो स्लाइड्स एज वेल, कि आप इससे रिलेटेड जो पॉकेट वीटो से रिलेटेड एडिशनल रिसोर्स वहाँ से देख सकें। द सेम विल बी अटैच इन द
डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, बट वीडियो के एंड में आपको वो नज़र भी आ जाएंगे लिंक्स। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि वॉशिंगटन ने, लिंकन ने, ये कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स ने कौन कौन से वीटोज़ कितनी कितनी दफ़ा यूज़ किए, या आप मेन चीज़ें अगर याद कर लेंगे, वॉशिंगटन ने 2 रेगुलर वीटोज़ किए, इसने कोई यूज़ नहीं किए, तो टोटल 2 वीटोज़ किए और इसका कोई भी वीटो ओवरराइड नहीं हुआ। ओबामा फॉर इंस्टेंस ने 12 रेगुलर वीटो यूज़ किए, कोई पॉकेट वीटो नहीं यूज़ किया, और 12 टोटल वीटोज़ इसके हो गए, और एक इसका वीटो ओवरराइड कर दिया था कांग्रेस ने। और फिर आपको टोटल नंबर याद होना चाहिए कि इतने अभी तक वीटोज़ हो चुके हैं, इतने पॉकेट वीटोज़ हो चुके हैं, इतने टोटल वीटोज़ बने, और इनमें से इतने अभी तक कांग्रेस ओवरराइड कर चुकी है। तो इसके बाद हम बाकी डिस्कशन अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Assalamu alaikum everyone, welcome back to the Political Science Paper 2 lecture series on near peer. We're going to continue where we left in the last lecture, which is that presidents also have a lot of legislative powers other than the executive powers that we discussed. तो सबसे पहले हमने वीटो पावर को बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था। वीटो पावर के बाद जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास एक, उसे कहते हैं पावर ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। पावर ऑफ मैसेजेस बेसिकली ये है कि इसके अंदर प्रेसिडेंट में सेंड मैसेजेस दैट प्रपोज सम लेजिस्लेटिव मेजर्स। बेसिकली प्रेसिडेंट खुद, चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिस तरह हमें पता है कि खुद लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता, यानी उसका वोट नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर, ना ही वो पार्लियामेंट में बैठता है जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर बैठता है। तो इसलिए कानून पास बहरहाल कांग्रेस ही करती है। तो अगर प्रेसिडेंट ने, या तो वो वीटो कर सकता है कि कोई उसे अगर नहीं पसंद आया कोई लॉ, और उसके बाद फिर वो उसे ओवरराइड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर उनके पास इतनी मेजॉरिटी हो तो। मगर अगर कोई लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि ये कानून साजी होनी चाहिए, उस केस में प्रेसिडेंट चाहें तो, अगर उनके पास इतनी मेजॉरिटी हो तो। मगर अगर कोई लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि ये कानून साजी होनी चाहिए, उस केस में प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली कोई पावर नहीं है, वो भी कांग्रेस की ही सवाबदीद है। द बेस्ट दैट प्रेसिडेंट कैन डू इज टू सेंड मैसेज टू द कांग्रेस के जनाब तल्ला जे कानून का पास कर दो। मतलब बेसिकली वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कांग्रेस से प्रेसिडेंट कर सकता है कि जी ये वाली लेजिस्लेशन पास होनी चाहिए। But since he is the president, since he is the head of the state, he also is one of the most popular person in his party. उसकी political party में एक पूरी उसकी following होती है, लोग उसके वो जो, जैसे कि बराक ओबामा था तो डेमोक्रेट्स का वो सबसे पॉपुलर कैंडिडेट था। ऑफ कोर्स रिपब्लिकन्स में डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी एज वेल। तो इसलिए इन सर्टेन वेज प्रेसिडेंट की बात की अहमियत होती है। तो प्रेसिडेंट जो मैसेज देता है कांग्रेस को, वो बहरहाल बहुत दफ़ा कांग्रेस उसको फिर कानून साजी उस पर कर लेती है। देयर आर लॉट्स ऑफ लॉज विच ओ देयर ओरिजिन टू द प्रेसिडेंशियल मैसेजेस। फॉर इंस्टेंस द फेमस मोनरो डॉक्ट्राइन which was enunciated by President Monroe was transmitted to Congress through a message. This was basically about non-intervention policy in foreign affairs, in internal affairs of other countries. इसी तरह प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जो न्यू डील प्रोग्राम्स अपने एक्सेप्ट करवाए थे कांग्रेस से, वो भी मैसेजेस के थ्रू ही करवाए थे और फिर उन पे लेजिस्लेशन की गई थी। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पेट्रनेज की पावर है। पेट्रनेज का मतलब है बेसिकली फेवर्स। टेक्निकली अगर हम इसको सिंपल देखें ब्रेकडाउन करके, तो बिकॉज आई कैन गिव यू सर्टेन फेवर्स, दैट्स वाई आई हैव सर्टेन कंट्रोल ओवर यू। बिकॉज आप मुझसे अगर वो फेवर लेना चाहते हैं तो फिर आप मेरी बात सुनेंगे। तो चूंकि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा फेडरल अपॉइंटमेंट्स करता है डिफरेंट सर्विसेज के अंदर, जैसे हमने देखा है, इसीलिए प्रेसिडेंट बारगेन्स कर सकता है विद मेंबर्स ऑफ कांग्रेस कि वो अगर प्रेसिडेंट की मर्जी के प्रपोजल्स कांग्रेस में दें तो उसके बदले में प्रेसिडेंट फिर उन्हें कुछ पावर, कुछ अपॉइंटमेंट्स में उनको अपॉइंट कर सकता है, कमीशंस में, दूसरी चीज़ों में। Then there's this concept of delegated legislation. Delegated legislation basically takes two forms. अमूमी तौर पे कांग्रेस जनरल आउटलाइंस में लॉज को बनाती है, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं लिखी होती। तो उसकी जो डिटेल्स हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसकी क्या डिटेल रेगुलेशंस होंगी, वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है। सो फॉर इंस्टेंस कांग्रेस ने कोई एजुकेशन के ऊपर कोई बिल पास कर दिया, या लेट्स से उन्होंने
हेल्थ केयर के ऊपर कोई बिल पास कर दिया जिसमें ब्रॉड आउटलाइंस में बात की गई है, वो फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसको डील करेगा। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी निटी ग्रिटीज में जाएगा, विच will be dealt with the secretary or the head of that department, who then subsequently is under whose supervision? The president. तो इस तरीके से indirectly president rules बनाने में डायरेक्टली इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। दूसरा तरीका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, जो कि एक ज़्यादा डायरेक्ट तरीका है, वो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। Executive order is a directive which is issued by the president in order to manage the operations of federal government. Federal government के affairs को manage करने के लिए जो वो directives issue करता है उसे executive order कहते हैं। अब ये basically सच इन order, इसकी power भी जो है president के पास different acts of Congress के जरिए आई है, जिनके through president को कुछ discretionary powers जो हैं वो दे दी गई हैं। तो इसके जरिए बेसिकली खुद से आप ये समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस दे देता है, लेकिन हमारे यहाँ रूल फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है उसको 120 दिन के अंदर पार्लियामेंट अगर अप्रूव करेगी तो वो लॉ बनेगा, अदरवाइज वो लैप्स कर जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मगर यूएस में ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनटिल रिपील्ड बाय एनी अदर इंस्टीट्यूशन तो वो कंटिन्यू रहता है। तो एग्जैक्टिव इस तरीके से प्रेसिडेंट के पास काफ़ी पावर है। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट यूज दिस पावर एक्सटेंसिवली। इसका मतलब कि इट्स अ वे टू बाईपास द कांग्रेस ऑल टुगेदर। और उन्होंने रोजवेल्ट का रिकॉर्ड है कि 3721 ऑर्डर्स पास किए, विच इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल बिकॉज फ्रैंकलिन रोजवेल्ट हैड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंसी विच इज़ द हाइस्ट इन द यूएस। ऑल्सो बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो एमरजेंसी ऑर्डर्स पास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बीच में एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए, ताकि स्विफ्ट एक्शन लिया जा सके। प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू कन्वीन स्पेशल सेशंस ऑफ द कांग्रेस, कि वो बेसिकली कांग्रेस को कहे कि जी बहुत इंपॉर्टेंट मसला चल रहा है, कांग्रेस का इजलास हो और इस पर कांग्रेस कोई फैसला करे, तो ये उसके पास इख्तियार है। 1913 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉज पास हुए थे विद रिगार्ड्स टू सब्सिक्वेंटली जो फिर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी ज़रूरत पड़ी जिन चीज़ों की, दे वर ऑल पास इन स्पेशल सेशंस कन्वीन बाय प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। Then this is some random idea that how president is very popular, he's the leader of the nation, his office carries a respect, he can create a public opinion against his opponents in Congress, and subsequently Congress has to comply with them, hence he can appeal to public opinion. This is not obviously always effective because जब वुडरो विल्सन की केस स्टडी सारे सिचुएशन में बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी कारआमद है कि वुडरो विल्सन ने फॉरेन नेशंस के साथ ट्रीटी निगोशिएट की लीग ऑफ नेशंस की, कि हम सारे एक लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे, जो कि यूनाइटेड नेशंस की टेक्निकली एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। और लीग ऑफ नेशंस का आइडिया खुद वुडरो विल्सन ने दिया और उसके जो नुकात थे 14 पॉइंट्स उनके अंदर, लेकिन सेनेट ने वुडरो विल्सन के इस आइडिया को अप्रूव नहीं किया, बाकी दुनिया ने कर लिया। तो लीग ऑफ नेशंस बन गई लेकिन अमेरिका उसका हिस्सा नहीं था, हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसका आइडिया दिया था क्योंकि अमेरिकन सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया उसे 2/3 मेजॉरिटी से। अब इसी चक्कर में फिर प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन टुक टू द स्ट्रीट्स एंड ही स्टार्टेड कैंपेनिंग अगेंस्ट सेनेटर्स कि जी इन्होंने पास नहीं किया। वो लीग ऑफ नेशंस के फेवर में उसने एड्रेसेस करने शुरू किए, ही स्टार्टेड अपीलिंग टू पब्लिक ओपिनियन, but it was futile. There are some financial powers at president's disposal as well. Even though the control over federal finances has been vested in Congress, but in actual practice, president की input बहुत important हो जाती है. So what this means is that बेसिकली कांग्रेस पैसे एलोकेट करती है डिफरेंट एजेंसीज को, और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा गवर्नमेंट शटडाउन का। गवर्नमेंट शटडाउन यूएस में होती है वो ये कि ऑफिशियल फंक्शंस और ऑपरेशंस ही बंद हो जाते हैं यूएस में डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के। वाई? बिकॉज कांग्रेस कोई नया कांग्रेस ने हर साल जो बिल पास करना होता है कि पैसे रिलीज करने होते हैं डिफरेंट एजेंसीज को, वो जब नहीं कर पाती तो दे डोंट हैव द ऑपरेटिंग मनी एंड फाइनेंसेस टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स, एंड देन गवर्नमेंट एजेंसीज टेक्निकली शट डाउन। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट शट डाउन, और ये अक्सर होता है यूएस के अंदर, एंड देन इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन जो बजट बनता है जनरली, the Budget and the Accounting Act of 1921 puts additional responsibilities on the presidency for the preparation of US federal budget, बट उसकी अप्रूवल जो है वो कांग्रेस करता है। तो प्रेपरेशन ऑफ द बजट जो है वो प्रेसिडेंट की सुपरविजन में आती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विच इज अगेन पास्ड बाय कांग्रेस। हैंस इसको फिर आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे ओवर टाइम कांग्रेस ने बहुत सारी पावर्स
इन्हांस की हैं प्रेसिडेंट की. देन देयर आर जुडिशियल पावर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर्स हैं. वो सबसे इंपॉर्टेंट पावर उसमें क्लेमेंसी की पावर्स हैं, जिसमें दे आर पावर्स ऑफ पार्डन एंड कम्यूटेशन. पार्डन मतलब कि जिन लोगों ने भी फेडरल कोई ऑफेंडर्स, फेडरल ऑफेंडर्स हैं, कोई भी फेडरल लॉ किसी ने ब्रीच किया है, कोई क्राइम किया है, जो प्रिजनर्स हैं, उनको या तो प्रेसिडेंट मुकम्मल तौर पे पार्डन कर सकता है, ये हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और कम्यूट या उसकी सज़ा को कम्यूट कर सकता है. कम्यूट है इसके कम सज़ा दे सकता है. अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है तो वो उसकी सज़ा 5 साल की कर दे, 7 साल की कर दे. इस तरीके से वो उसकी पावर को कम्यूट कर सकता है या मुकम्मल तौर पे पार्डन कर सकता है टू ऑल द ऑफेंडर्स हु आर convicted for breaching federal laws, not state laws, federal laws, except those impeached by the Senate. अगर हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स को या फेडरल जुडिशरी के किसी बंदे को, अगर या लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट को सेनेट ने इम्पीच किया है, सेनेट ने अपनी प्रोसीडिंग्स में कन्विक्ट किया, तो उसको प्रेसिडेंट माफ नहीं कर सकता. He appoints the judges of the Supreme Court with the consent of the Senate. This is also technically a judicial power because ये किस्म की judicial patronage है कि आप किसको अपॉइंट करते हो, किसको नहीं करते. तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं एट एनी टाइम, और जब भी, और लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं अनटिल उनका, अगर वो अपनी कॉन्डक्ट बरकरार ना रख पाए, ग्रोस मिसकॉन्डक्ट हो जो कि फिर सेनेट इम्पीच करती है, या अगर वो उनको कोई बहुत इस तरह का कोई मेडिकल इशू हो जाए और एनीथिंग लाइक दैट. तो लेकिन और जब भी वैकेंसी आती है तो फिर प्रेसिडेंट फिर उतने लोगों को अपॉइंट करता है. तो अभी रिसेंटली स्कारामुची को जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपॉइंट किया, तो अपॉइंट फेडरल जुडिशरी के मेंबर्स को, जब भी फेडरल जुडिशरी के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी मेंबर्स जब होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन उसके लिए भी सेनेट की अप्रूवल चलती है. और हम देखते भी रहे हैं अभी रिसेंटली का कैसे फिर उनकी पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं और सेनेट जुडिशरी कमेटी पूरे इंटरव्यूज और इन्वेस्टिगेशन करती है उस जज को अपॉइंट करने से पहले. देन देयर आर लॉट्स ऑफ इमरजेंसी पावर्स. ये प्रेसिडेंट के पास को एक्सप्रेसली पावर्स तो नहीं दी कॉन्स्टिट्यूशन ने, मगर ये बेसिकली कांग्रेस ने चूंकि ओवर टाइम बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर पावर्स प्रेसिडेंट को दी, इसी तरह कोर्ट्स ने ओवर टाइम काफ़ी सारी इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ली. 1861 में फॉर इंस्टेंस कांग्रेस की मर्जी के बगैर वैसे तो अब्राहम लिंकन ने हेबियस कॉर्पस का राइट जो है वो सस्पेंड कर दिया इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि सिविल वॉर चल रही थी. हेबियस कॉर्पस के 24 घंटे के अंदर आपने किसी बंदे को कोर्ट के सामने पेश करना है अगर आपने किसी को डिटेन किया हुआ है. तो एवरी पर्सन दैट पुलिस अरेस्ट within 24 hours he must be brought before the court of law so that the court can determine कि इस बंदे को कोई गलत तो अरेस्ट नहीं किया गया, if he is not arbitrarily detained, और उसको किसी राइट कॉज के लिए किया, कहीं रियासत ज्यादती तो नहीं करी किसी के साथ. मगर दिस राइट वाज सस्पेंडेड by Abraham Lincoln during Civil War even without congressional approval. प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इमरजेंसी पावर्स इन्वोक की थी, और जब उन्होंने फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, which is considered to be a very regressive executive order, one of the very dark executive orders, especially given that FDR generally was a very liberal person, कि उसने जापानीज अमेरिकन जो कि वेस्ट कोस्ट पे थे, they were placed in internment camps during World War II. उनको internment camps में रखा गया था, they were not allowed to escape. कि जो जापानीज अमेरिकन हैं, क्योंकि अमेरिका वॉज एट वॉर विद जापान, तो इस कंसर्न के तहत, इस असम्पशन के तहत कि इनकी लॉयल्टीज डिवाइडेड होंगी, तो इसके तहत फिर जापानीज अमेरिकन के साथ डिस्क्रिमिनेट करके उन्हें इंटरमेंट कैंप्स में रखा गया था. दिस डिसीजन वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट एज वेल. So this meant that court has granted some emergency powers and validated some emergency powers used by presidents. Harry Truman declared the use of emergency powers when he nationalized private steel mills. उन्होंने private steel mills को nationalize किया ट्रूमैन ने during 1952 because steel की ज़रूरत थी. कोरियन वॉर चल रही थी. कोरियन वॉर was a very bloody war. It's also known as forgotten war, क्योंकि इसमें बहुत लोग डिस्कशन उतनी नहीं होती इतनी हिस्ट्री में. हालांकि इसका जो डेथ टोल था ऑन द यूएस विच इज़ वाज हाईएस्ट इफ इवन वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 1 की कैजुअलिटीज़ यूएस की मिलाएं तो कंबाइंड उनका कैजुअलिटी रेट कम होगा और कोरियन वॉर में ज़्यादा होगा.
तो जब लेबर स्ट्राइक हुई 1952 में और स्टील नहीं दे रही थी बहुत सारी प्राइवेट स्टील मिल्स, तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने वॉर को यूज़ करते हुए कि कोरियन वॉर चल रही है, इमरजेंसी है, प्राइवेट स्टील की ज़रूरत है फॉर इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्री, तो नेशनलाइज की थी प्राइवेट स्टील मिल्स को। मगर ये जो एक्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया था इन दिस डिसीजन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो देयर हैज़ बीन टसल ओवर टाइम बिटवीन पावर्स कि कितनी इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट यूज कर सकता है, कितनी नहीं। इट्स गुड दैट यू मेक दीज रेफरेंसेज एंड एग्जांपल्स टू शो द एग्जामिनर दैट यू नो द नुआंसेस ऑफ दिस टॉपिक एज वेल। लास्ट इज द आइडिया ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में मैं आपसे कुछ आइडियाज शेयर कर देता हूँ, ऑब्वियसली यू कैन टेलर इट अकॉर्डिंगली हाउ एवर यू डीम फिट। इसमें बेसिकली आपने आइडिया ये देना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं है जितना वो कंसिडर किया जाता है। आप इसमें एक बात ये कर सकते हैं कि किस तरीके से लिमिट हुई है उसकी पावर्स, कांग्रेस का उस पर चेक है सेनेट की शक्ल में, उसके पावर चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट के तहत जुडिशरी का उस पर चेक है, प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच कर सकते को इम्पीच हो सकता है सेनेट के ज़रिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम डिज़ाइन इस तरीके से है, while this was designed to ensure कि कोई ऑटोक्रेटिक प्रेसिडेंट ना बन जाए, उसकी पावर्स को कंट्रोल रखने के लिए है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डेडलॉक्स। तो अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इनएफिशिएंट इन डेवलप्ड वर्ल्ड बिकॉज काफ़ी सारे डेडलॉक्स आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट, एक बिल पास हुआ, वो बिल कांग्रेस के पास, प्रेसिडेंट के पास गया, उसने से वीटो कर दिया, फिर उस पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो उस पर कुछ एग्रीमेंट नहीं हो रहा, बिल पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेसिकली सिस्टम में डेडलॉक्स आ जाते हैं और गवर्नमेंट शटडाउन्स उसका सबसे बड़ी एक मिसाल हमारे पास मौजूद है। तो ये आप बेसिकली इसमें एक पैराग्राफ लिख सकते हैं एज अ क्रिटिक ऑन द सिस्टम ऑफ इट बीइंग more prone to deadlocks and inefficiencies as compared to more smoother parliamentary democracies in the developed world like UK. It is easier to take decisions in UK because जो गवर्नमेंट जिसकी मेजॉरिटी होती है वही गवर्नमेंट बनाती है, उसका लॉ पास होता है, कोई वीटो शीटो नहीं इतना इस्तेमाल हो रहा, कोई उसका लॉ वीटो नहीं करेगा, तो इसलिए फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज रादर ईजियर there as well. You can make reference to Francis Fukuyama एंड हिज बुक पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। उसके अंदर बेसिकली उसने ये आइडिया पूरा एक्सप्लोर किया कि कैसे यूकेज वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल इज मोर एफिशिएंट, इज मोर रिस्पॉन्सिव कंपेयर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बिकॉज इतने मल्टीपल वीटो पॉइंट्स हैं कि हर कोई एक दूसरे को चेक कर सकता है कि जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग मुश्किल और प्रोट्रैक्टेड डिले हो जाती है, जबकि यूके में ज़्यादा स्मूथली और जल्दी हो जाती है। सो दैट्स व्हाट यू कैन राइट इन द क्रिटिक एज वेल। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Assalamu alaikum everyone, welcome back to the Political Science Paper 2 lecture series on near peer, and today we're going to continue with our discussion regarding the American president। और past papers में अक्सर जो है वो सवाल आता है comparison of American president with different heads of the state। So for instance के American president with the Indian or British prime minister or American president with Indian president, तो हम वो comparison जो है वो आज देखेंगे। Other than the hairstyles of the two heads of the state, there are not many similarities between the two। इसमें एक बड़ी अच्छी कोटेशन है हेरोल्ड डास्की की कि the president of the US is both more or less than a king, he is both more or less than a prime minister, the more carefully his office is studied, the more does its unique character appear। That's something that you can write in your introduction as well। So I'm going to quickly jump on the comparison। So सबसे पहले ये आपकी आसानी के लिए बहुत इजी कंपैरिजन चार्ट ड्रॉ किया, और आपने पेपर में भी जब भी कंपैरिजन्स के सवाल आने हैं तो उसी तरह बच्चों की तरह, जिस तरह मैंने आपके लिए ये बनाया, आपने भी इसी तरह लाइन लगाकर हेडिंग दोनों तरफ देकर बीच में हेडिंग देकर इसी तरह आपने पेपर में भी कंपैरिजन्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ताकि डायरेक्ट कंपैरिजन पता और एग्जामिनर को पता चले कि आपको उसकी एग्जैक्ट जिस्ट का आइडिया है। सो टर्म ऑफ ऑफिस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर। उसकी 4 साल की 4 years टर्म टेन्योर होता है, उससे पहले आप प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकते, कांग्रेस नहीं हटा सकती अनटिल ऑब्वियसली उसको इम्पीच किया जाए, विच इज अ रादर वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। He cannot be removed before the expiry of 4 years unless impeached earlier by Congress।
जबकि इंडियन या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, आइदर ऑफ द टू, इवन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, द टर्म ऑफ ऑफिस इज डिपेंडेंट अपॉन द लोअर हाउस. अगर लोअर हाउस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन, अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन लोअर हाउस में पास हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाएगा. यू ओनली नीड, he continues in office as long as he enjoys the support of the majority of the house. So the house, lower house only needs 50% plus one vote to remove the prime minister. जबकि प्रेसिडेंट को जो रिमूव करने का यूएस में प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, वो बहुत मुश्किल है कि आपने सबसे पहले कांग्रेस लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसे इम्पीच करे मेजॉरिटी के साथ, फिर उसके बाद जो अपर हाउस है सेनेट, वो 60 आउट ऑफ 100 उनके पास वोट हों विच आर मोर देन 50%, फिर जाके वो कहीं इम्पीच होता है, विच जनरली डज नॉट हैपन. इसलिए यूएस की तारीख में आज तक कभी कोई प्रेसिडेंट कॉन्विक्ट नहीं हुआ. इलेक्शन, अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है, और जबकि जो आपका इंडियन या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसका इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर, सबसे ज़्यादा सीट्स लेकर पार्लियामेंट में जो पार्टी आती है उसके लीडर को जनरली प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है. ये तरीक़ेकार है प्राइम मिनिस्टर का. तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है. प्रेसिडेंट का सेपरेट इलेक्शन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द कांग्रेस, और इनका इंडियन या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो उसी इलेक्शन के जरिए आता है, बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एज वी हैव डिस्कस्ड काउंटलेस टाइम्स. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं तो ही इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इसका भी मैंने आपको शुरू में बताया था अपने पोल साहिब 1 के लेक्चर्स में, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, ये हमने प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री वाली डिबेट में पढ़ा था. हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि सारी के वो टाइटुलर चीज़ें, यानी कि उसके नाम से सारी साइन सिग्नेचर्स होंगे, वो बेसिकली बिल्स को अप्रूव करेगा. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द टाइटुलर हेड. हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है कि वो एग्जीक्यूटिव का भी हेड है, यानी कि कैबिनेट का हेड है. उसके नीचे मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज और वो सारे लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर आती है, वो अपॉइंटमेंट्स करता है और वो सारी चीज़ें. तो प्रेसिडेंट दोनों चीज़ें हैं. जबकि इंडियन या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते. इन ममालिक में, पाकिस्तान में भी हेड ऑफ द स्टेट या तो मोनार्क होगा इन केस ऑफ ब्रिटेन, या तो प्रेसिडेंट होगा इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता. रिलेशन विद एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेटर. अगेन रिमेंबर द थ्योरी ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डिबेट, विच इज दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट and presidents in general in presidential systems are neither part nor answerable to legislature. ना तो वो legislature का हिस्सा होते हैं, ना वो उनको जवाबदेह होते हैं. In Britain, Pakistan and India, the prime minister is both part and answerable to legislature. इसी को extension है कि role of legislation क्या है इनका, legislation में क्या किरदार है. तो कानून साजी में भी प्रेसिडेंट डज नॉट जनरली गाइड द कोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी प्रेसिडेंट खुद बिल पेश नहीं कर सकता पार्लियामेंट कांग्रेस के अंदर, ना ही वो खुद उसका वोट होता है कांग्रेस के अंदर. वो मैसेजेस भेज सकता है, जैसे हमने पढ़ा, वो अपना पेट्रोनेज इस्तेमाल करके कन्विंस कर सकता है कि भाई ये बिल पास कर दो या इस पे वोट इस तरीके से करो, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता उसके अंदर किसी भी तरह. मगर प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, हाउस का मेंबर होता है, तो ही डायरेक्टली स्टीयर्स द कोर्स ऑफ लेजिस्लेशन. रिलेशन विद कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, विच आर ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द सेनेट. बट वंस दे आर कंफर्म्ड दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हु कैन डिसमिस देम एट एनी टाइम विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेनेट. ये यूएस ने अपने सुप्रीम कोर्ट डिसीजन माइल्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स में डिसाइड किया था. तो ये बेसिकली कैबिनेट के साथ रिलेशन है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, कि ही इज द बॉस. और बॉस किस तरीके से है कि वो अप्रूवल ऑफ सेनेट पहले अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगा सेनेट की अप्रूवल के साथ, लेकिन रिमूव उन्हें कभी भी कर सकता है. बट प्राइम मिनिस्टर ओनली सर्व एज द हेड ऑफ द कैबिनेट, ही इज नॉट द बॉस ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट मेंबर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड हैव सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल बैकिंग एज वेल. तो जैसे पाकिस्तान में भी जितने कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, या तो वो सेनेट का हिस्सा होते हैं या वो नेशनल असेंबली का हिस्सा होते हैं. बाय कैबिनेट आई मीन मिनिस्टर्स. तो उनका मेंबर होना जरूरी होता है पार्लियामेंट का. तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन थोड़ी कम हो जाती है इस केस में. डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, कौन पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व कांग्रेस, एब्सोल्युटली नो. बिल्कुल उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, पीरियड.
बट इंडियन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस। और इसी तरीके से हमें ये मिलता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे एग्जैक्ट मैकेनिक्स कैसे ऑपरेट करते हैं कि इंडिया के अंदर आर्टिकल 85(2)(b) के तहत प्रेसिडेंट लोकसभा यानी उनकी जो लोअर हाउस है बेसिकली, जैसे हमारी नेशनल असेंबली है, इंडियन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे और कैबिनेट एडवाइस करे तो प्रेसिडेंट वहां पर लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास भी है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को अपनी और फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर सकते हैं। देन देयर इज पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में भी कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर इज शेयर्ड बाय द सेनेट, बट प्रेसिडेंट मोनार्क अपॉइंट्स इन इंडिया एंड ब्रिटिश ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज जनरली मोर पावरफुल इन दीज कंट्रीज इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट्स बिकॉज उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम है, जबकि इंडियन प्रेसिडेंट ने उसको सेनेट से अप्रूव करना है। मोनार्क या प्रेसिडेंट जनरली जो एडवाइस होती है प्रेसिडेंट की उसी पे एक्ट करते हैं। नाउ इज दिस क्वेश्चन ऑफ हु इज मोर पावरफुल, और क्रिटिकल एनालिसिस वाले पोर्शन के अंदर आप ये बात क्वेश्चन एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे लोग इस डिबेट को ओपन छोड़ देते हैं। सो यू एज अ गुड पॉलिटिकल साइंटिस्ट शुड कम ऑफ एज अ गुड पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू एग्जामिनर, ताकि उससे पता चले कि आपको नुआंसेस का आइडिया है। Hence, the comparison between the checks and balances in the US and parliamentary supremacy in Britain, that it is generally the president of the US who is weaker. क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पावर सस्पेंड भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है पार्लियामेंट को किसी भी टाइम, वो क्या कहते हैं लेजिस्लेशन में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, वो लेजिस्लेशन का कोर्स को भी स्टीयर करता है। तो इन तरीकों से ब्रिटिश, और वो चूंकि पार्ट एंड पार्सल भी होता है लेजिस्लेचर का, तो उसके पास उस तरीके से ऑटोनॉमी भी कम हो जाती है। तो प्रेसिडेंट अपने बहुत ज़्यादा डिसीजंस के लिए कांग्रेस पे रिलाई कर रहा होता है। वो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स उसने करनी है वो सारी की सारी पे कांग्रेस से रिलाई करेगा। जो वो बजट प्रिपेयर करेगा उसके अंदर अप्रूवल वो रिलाई करेगा फ्रॉम द कांग्रेस। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट ऑन कांग्रेस। कांग्रेस के बहुत सारे फैसले, प्रेसिडेंट के बहुत सारे फैसले बाद में जुडिशरी वीटो कर सकती है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट की पावर्स इन अ वे बहुत लिमिट हो जाती है। द यूएस प्रेसिडेंट इज पावरफुल, very powerful, because he is the leader of the most powerful country in the world. The country is so powerful, hence the president is powerful. But अगर हम relatively अपनी distribution of power को देखें कि political dynamics ने, political structure ने कैसे powers distribute किए हैं, तो we'll see that president is relatively less powerful. तो ये हमें दो quotations भी मिलती हैं in support of this thesis, which you can argue. The next is the comparison between American president and the Indian president. This is Indian Prime Minister, I know that. So I don't know why I put that up. But anyways, it's a very good picture. It's a very interesting bromance. I would give that second favorite bromance after, of course, Obama and Joe Biden being number one. So comparison between American president and Indian president. जिस तरह हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट की अभी बात की, टर्म ऑफ ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर, इसी तरह इंडियन प्रेसिडेंट का ऑफिस भी कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर है। द ओनली डिफरेंस इज कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन सीक री इलेक्शन ओनली वंस। एफडीआर के बाद, एफडीआर चूंकि 4 दफ़ा प्रेसिडेंट बना था, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई यूएस में जिसके तहत प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दफ़ा बन सकता है यूएस में, री इलेक्शन यानी 1 दफ़ा। बट इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इधर इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए यूएस में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। इट्स प्रैक्टिकली अ डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को बेसिकली वोट दे रहे होते हैं कि वी आर वोटिंग फॉर बर्नी, वी आर वोटिंग फॉर हिलरी, वी आर वोटिंग फॉर ट्रम्प, वी आर वोटिंग फॉर एलिजाबेथ वारन। तो इस तरीके से तकरीबन वो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली एक डायरेक्ट इलेक्शन है। इंडियन इलेक्शन इज कम्प्लीटली इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बेसिकली जितने स्टेट और यूनियन असेंबलीज हैं और पार्लियामेंट है उनके लोग इलेक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली और सेनेट, बेसिकली आपकी पार्लियामेंट प्लस जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं हमारे पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली, इस तरीके से। तो इंडिया में भी जो स्टेट्स की और यूनियन की असेंबलीज हैं और पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जबकि इनका इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल डिफरेंट होता है।
Constitutional status American president का again both head of the state and head of the government. He is the real executive. Indian president is only the head of the state. All action of republic are taken in his name. He's only a titular nominate head. He's not the head of the government. His relation with cabinet is that American president is the boss of the cabinet. He appoints the cabinet with the consent of the Senate and can remove them at will, जैसे कि हमने अभी recently पढ़ा. But Indian president has to act on the advice of his cabinet and prime minister. Indian president is bound by the advice of the cabinet and prime minister. ये बात इसमें नहीं आएगी. So in this way, of course, because Indian president is more titular, American president is अगर ये पावर इंडियन प्रेसिडेंट के पास हो कि वो कैबिनेट को कंट्रोल कर सके तो वो फिर सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहा, फिर वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बन जाएगा. लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में प्रेसिडेंट नहीं होता, वो प्राइम मिनिस्टर होता है. देन अगेन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस का जो क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व कांग्रेस एज वी डिस्कस्ड, बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट कैन डिसॉल्व द हाउस. रिलेशन विद स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं डिफरेंट, न्यूयॉर्क, ओहायो, मैसाचुसेट्स, इन सब के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन नॉट इंटरफेयर कि वो उन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करे जिन पे स्टेट की गवर्नमेंट्स का राइट है, बिकॉज अमेरिका is a very strong federation, operates on federal principles के powers are divided between center and states. So president being the head of the federal government cannot interfere in state governments. Indian president, even though India भी एक फेडरेशन है, लेकिन हम ये आगे पढ़ेंगे जब हम इंडिया के सिस्टम देखेंगे कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट, तो काफ़ी पावर्स सेंटर में एक्यूमुलेट हुई है इंडिया में. तो इसीलिए इंडियन प्रेसिडेंट को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट में, किसी भी स्टेट में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू करे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन उस स्टेट की डायरेक्टली खुद असूम कर ले. अब इसके अंदर फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाई इज इंडियन प्रेसिडेंट सो पावरफुल. दिस यू कैन राइट अ क्रिटिक कि इंडियन जो सिस्टम है वो थीरी के अगेंस्ट है, बिकॉज इंडिया अपने आप को फेडरेशन डिक्लेयर करता है, लेकिन अपने इंडियन प्रेसिडेंट को इतनी पावर्स दी हुई हैं, वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है कैबिनेट की मर्जी से, वो स्टेट्स में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, तो इसलिए ही कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स. तो काफ़ी पावर दी हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, which goes against the theory of federation. फेडरल सिस्टम्स के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंदर, in parliamentary systems, Indian president is only supposed to be a titular head, a nominal head. लेकिन इंडिया में बहुत पावरफुल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट ने, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था कि इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट. तो यू कैन रिजर्व दिस डिस्कशन फॉर अ वाइल, बिकॉज हम इंडियन जब सिस्टम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इस चीज़ को डिटेल में लिखेंगे. बट यू कैन ऑल्सो चेक गूगल के वाई इंडियन प्रेसिडेंट इज पावरफुल, और इन्हीं आइडियाज़ को जो हमने डिस्कस किया, राइट अ पैराग्राफ और 2 ऑन दिस टू प्रेजेंट a good critique of this as well. So I hope that this lecture helped you guys. ये क्वेश्चन पास पेपर में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं जो अभी मैंने आपको करवाए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई लेक्चर्स आर फ्रेम्ड and curated in consonance with how past papers questions जो हैं वो हमारे पास किस तरह के. Assalamualaikum everyone, we're going to continue our discussion in this political science paper 2 lecture series on near peer, and today we're going to discuss the powers of the US Senate. Now again I would like to reiterate what we had earlier discussed कि US operates under the system of checks and balances और separation of powers, और सब में multiple checks and balances और veto points हैं on each other to limit each other, and that is clearly depicted in the powers of the US Senate. Some quick introduction. US Congress is bicameral. इसका lower house House of Representatives है और upper house Senate है. It was formulated through the Great Compromise of 1787, which defined the legislative structure under the US Constitution. Later in 1789, Constitution was passed. In 1791, the first president was elected, I think. Roger Sherman was the member who proposed that there should be bicameral legislature, along with proportional representation of states in the lower house, यानी कि आबादी के तनासुब से, जिस तरह हमने bicameralism की थ्योरी में पढ़ा था कि लोअर हाउस में आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर्स होने चाहिए. तो फॉर जिस तरह पाकिस्तान में भी है कि पंजाब से नेशनल असेंबली की सीटें ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली की सीटें कम हैं, मगर इसी तरह यूएस के अंदर
फॉर इंस्टेंस कैलिफोर्निया से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन मेन में फॉर इंस्टेंस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट्स कम हैं. बट जो सेनेट है उसमें तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स, तमाम स्टेट्स की एक जितनी सीट्स होंगी. But required the upper house of Senate to be weighted equally among the states, and it is the backbone of American federal system. हमने ये भी डिस्कस किया था that why Senate is very important for federalism and federation in our earlier discussion in Pol Sci 1 regarding federalism. Currently, there are 100 US Senate ने जो allocate किया Constitution है, there are total 100 members of US Senate, and there are 50 states. तो it goes without saying that each state has 2 members, 2 senators. तो 50 रियासतें हैं, 100 टोटल मेंबर्स होते हैं, तो हर रियासत से 2 सेनेटर्स होते हैं. तो दिस इज़ दी चार्ट दैट शोज के करंटली किस पार्टी के कितने अभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. रिपब्लिकन पार्टी के 53 सेनेटर्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सेनेटर्स हैं और 2 इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं. वन ऑफ देम इज बर्नी सैंडर्स, आई थिंक. Composition in life. So there are 100 members in the US Senate. They are elected for 6 years and 1/3 retiring and up for election every 2 years. Basically होता ये है कि हर 2 साल बाद US Senate का election होता है, जिसके अंदर 1/3 US Senators की 6 साल की टर्म कंप्लीट हो जाती है. तो वो इलेक्शन की इंट्रोडक्शन इस तरीके से सीक्वेंस है शुरू से कि हर 2 साल बाद 1/3 सेनेटर्स की 6 ईयर टर्म कंप्लीट होती है. तो इसलिए उनका इलेक्शन 1/3 सेनेटर, 1/3 ऑफ द सेनेट चेंजेस एवरी 2 years बेसिकली. रिटायरिंग सेनेटर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. सेनेटर्स पहले, जो कि हमने पढ़ा भी था कि यूएस एक एक्सेप्शन है बाइकेमरल सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि जो अपर हाउस है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरली डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होती, क्योंकि आप जनरली चेंबर ऑफ स्टेट्समैन बनाते हो उसे. आप तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, यूके में भी इनडायरेक्ट तरीके से अपॉइंट होते हैं हमारे सेनेटर्स. पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी. यूके में वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट उसके अंदर. तो इलेक्शन का प्रिंसिपल बेसिकली, पॉपुलर इलेक्शन का प्रिंसिपल अपर हाउसेस में जनरली फॉलो नहीं होता, सेनेट्स में नहीं फॉलो किया जाता. और एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर व्हाई दैट इज नॉट फॉलोड, बिकॉज आपने वहां पर पॉपुलर विल का, पॉपुलर चेंबर नहीं है सेनेट. लोअर हाउस इज कंसिडर्ड टू बी द पॉपुलर चेंबर. अपर हाउस में बेसिकली डिलिबरेटिव चेंबर होता है. तो सेनेट, लेकिन यूएस इसकी एक्सेप्शन है कि वहां पर पहले डायरेक्टली वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू इलेक्ट होते थे, सिमिलर टू हाउ पाकिस्तान इंडिया सेनेटर्स गेट इलेक्टेड. बट आफ्टर 17th amendment in 1913, one of the considered to be one of the important legislations in the progressive era, the senators were directly elected. क्वालिफिकेशन क्या है एक सेनेटर बनने की? यू शुड हैव एट लीस्ट 30 years of age, resident of the US for 9 years at least, resident of the state at the time of the election, must not be holding any office of profit under the government of US. Now let's go to the powers of the US Senate. क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है कि the US Senate is the most powerful upper chamber in the world. दुनिया में जितनी अपर चेंबर्स हैं, जितनी सेनेट्स हैं, उनमें US Senate सबसे ज़्यादा पावरफुल है. Also that American Senate is the saucer in which the boiling tea of the house is cooled. Basically it's a very cliched expression which is just saying कि Senate बहुत important है, Senate बहुत powerful है, Senate एक deliberative chamber है, और Senate हाउस की बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेक कर सकती है. यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अथॉरिटी होती है सेनेट की. तो इन दोनों चीज़ों में हम यही देखेंगे. बेसिकली आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये कि दुनिया में जहाँ पर कहीं भी बाइकेमरल निज़ाम एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है. क्योंकि लोअर हाउस, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो लोअर हाउस पॉपुलर चेंबर है, लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको पावर ज़्यादा देते हो. तो हमेशा लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है अपर हाउस से. अपर हाउस इज जनरली वीकर देन लोअर हाउसेस. बट यूएस के अंदर अपर हाउस इज मोर पावरफुल देन लोअर हाउस, which automatically makes it the most powerful upper house in the world, because दुनिया में किसी और सेनेट के पास इतनी पावर्स नहीं हैं जितनी अमेरिकन सेनेट के पास है. Now what are those powers? Those are a lot. Let's get on with them. The first, legislative power. Senate enjoys equal and coordinative legislative authority with the House of Representatives. जिस तरीके से लोअर हाउस बिल इनिशिएट कर सकता है, उसी तरह सेनेट भी इनिशिएट कर सकती है बिल को. ऑर्डिनरी बिल्स में भी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस. लेकिन जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है कांग्रेस की, वो ये शो करती है कि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट बिल हैं तारीख में जो रहे यूएस की, वो
पहले सेनेट में ओरिजिनेट किए हैं, सेनेट से फिर पास होके वो हाउस में गए। अगर दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट आ जाए अमेंडमेंट्स के ऊपर, कि फॉर इंस्टेंस सेनेट ने एक बिल पास किया है, वो पास करके हाउस में भेजा और हाउस ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, यानी कि बिल की एग्जैक्ट नेचर पे डिसएग्रीमेंट आ जाए, तो यूएस में सिस्टम ये है, उसका मोटस ऑपरेंडी ये है कि एक कॉन्फ्रेंस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है विच कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 मेंबर्स दैट रिजॉल्व्स द डेडलॉक. Again, the constitutional history, the legislative history of the US shows that it is generally the Senate जिसका point generally dominate करता है. That conference committee is also composed of the legislators equally divided between upper and lower house. Not always equally क्योंकि odd number है, precisely for this reason. But there is an thing called the origination clause or the revenue clause. अगर मैं comparison के लिए आपकी understanding के लिए बताऊं तो पाकिस्तान में यह है कि जो money bills हैं, all the bills that relate to disbursements of money, budget for instance, are passed only in the lower house. पाकिस्तान में भी आम कानून साजी इसी तरीके से होती है कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पहले नेशनल असेंबली में गई, नेशनल असेंबली ने उसको पास किया, फिर वो सेनेट में गई और फिर सेनेट ने उसको पास किया. लेकिन जो मनी बिल है या बजट है, बजट सेनेट में अप्रूवल के लिए नहीं जाता, बजट को सिर्फ नेशनल असेंबली अप्रूव करती है. और उसके पीछे लॉजिक ये है, जो कि दुनिया में बाकी भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स में यही प्रैक्टिस फॉलो होती है. द लॉजिक इज दैट मेरा पैसा मेरे नुमाइंदों की मर्जी से होना चाहिए. सेनेटर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय मी, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट my MPs, my MNAs are directly elected by me, hence budget should only be passed by the lower house. No taxation without representation और democracy का fundamental cornerstone है कि मेरे पे कितना टैक्स लगेगा, मेरा पैसा कैसे स्पेंड होगा, मेरा टैक्स दिए हुए पैसे वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे, इन इफेक्ट मैं डिसाइड करूंगा. इसीलिए सेनेट को ये इख्तियार नहीं होता जनरली. बट अगेन यूएस इज एन एक्सेप्शन. यूएस में भी ओरिजिनेट नहीं कर सकता सेनेट में. देयर इज सम हिस्टोरिकल लेगेसी टू इट के उन्होंने भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये अथॉरिटी नहीं दी थी सेनेटर्स को कि वहां से बिल ओरिजिनेट नहीं कर सकता. तो यानी रेवेन्यू रिलेटेड मनी बिल्स ओरिजिनेट नहीं कर सकते सेनेट में. लेकिन सेनेटर्स के पास वास्ट अमेंडमेंट पावर्स हैं यूएस के अंदर. तो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में तो मनी बिल्स सेनेट में जाते ही नहीं हैं. पाकिस्तान में सेनेट में नहीं जाते और इंडिया में राज्यसभा में नहीं जाते. यूएस में वो उसमें सिर्फ ओरिजिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाउस के पास करने के बाद वो सेनेट से अप्रूवल उनकी ज़रूरी है. और सेनेट के पास अमेंडमेंट की पावर्स हैं. सेनेट चाहे तो कुछ भी चेंज कर दे, टाइटल ऑफ द बिल, मनी बिल के अलावा अंदर सब कुछ भी बदल सकती है और फिर आगे से ऑब्वियसली वो कॉन्फ्रेंस कमेटी में चला जाएगा और फिर डेडलॉक रिजॉल्व होगा. बट दिस ऑल्सो काइंड ऑफ मेक सेंस बिकॉज यूएस सेनेटर्स हमारे सेनेटर्स की तरह इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं. इसीलिए वो डेमोक्रेसी की थ्योरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि यूएस सेनेटर्स भी डायरेक्टली इलेक्टेड हैं. तो इसलिए उनका मनी बिल्स पे कंट्रोल होना बेसिकली अवाम की कंट्रोल की ही नुमाइंदगी करता है उनके पैसे के ऊपर. Then Senate has executive powers. This is going to be easy for you to understand because हमने American president की powers discuss की हैं, तो उससे ये comparable है. Appointments जितनी करता है president उसके लिए approval Senate की ज़रूरत है, जैसे हमने discuss किया military official, judges of federal judiciary, appointments of federal civil service, power to declare war rests with Congress, power to terminate war rests with the president. ये हमने discuss किया था पिछली दफ़ा भी. Then there's this concept of senatorial courtesy. प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के लोगों को अपॉइंट करता है और उनकी अप्रूवल वो सेनेट से लेता है. ठीक है. अब देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज वर्किंग इन द यूएस जिनकी टॉप नॉच पोजीशंस पे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करता है विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट. नाउ सेनेटोरियल कर्टसी एज द नेम सजेस्ट्स इज कि प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू शो कर्टसी टू सेनेटर्स. वो कर्टसी क्या है? वो कर्टसी ये है कि अगर कोई प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करने जा रहा है किसी बंदे की फॉर एन ऑफिस विच इज़ लोकेटेड इन फॉर इंस्टेंस न्यूयॉर्क स्टेट में, न्यूयॉर्क की रियासत के अंदर, न्यूयॉर्क स्टेट में अगर कोई फेडरल ऑफिस है, उधर कोई अपॉइंटमेंट करने जा रहा है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क के जो सेनेटर्स हैं उनकी मर्जी के बगैर उस बंदे को नहीं लगाएगा. अगर न्यूयॉर्क के सेनेटर्स को वो बंदा ठीक नहीं लगता तो प्रेसिडेंट उसको नहीं लगाएगा. So the Senate expects that the president in nominating certain office holders will select persons who are satisfactory to the senators from the state in which the offices are located.
और अगर प्रेसिडेंट ऐसा ना करे, प्रेसिडेंट अगर वायलेट करे सेनेटोरियल कर्टसी को, यानी कि कैलिफोर्निया में फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है जो जिसका ऑफिस कैलिफोर्निया में लोकेटेड है और उधर कोई अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट, और कैलिफोर्निया के सेनेटर्स उस अपॉइंटमेंट की मर्जी नहीं देते, वो नहीं पसंद करते कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करे, तो बाकी सारे सेनेटर्स चाहे वो उसकी पार्टी के हैं या नहीं है, वो अपने सेनेटर का साथ देंगे प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन को ब्लॉक करने के। It is a long-standing, unwritten, non-official, and non-binding political custom or a constitutional convention describing the tendency of U.S. senators to support a Senate colleague in opposing the इसीलिए उन सेनेटर्स की मर्जी जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स, अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑल ट्रीटीज एंड नेगोशिएशंस आर कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट but they are subject to ratification by 2/3 majority of the Senate. The Foreign Affairs Committee of the US Senate exercises considerable influence over foreign policy of the US. इसके एग्जाम्पल हमने देखा कि कैसे वुड्रो विल्सन की लीग ऑफ नेशंस को नहीं अप्रूव किया, ईरान न्यूक्लियर डील जो ओबामा ने पास की उसको सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया। तो फॉरेन अफेयर्स में काफ़ी कंट्रोल एक्सरसाइज करती है सेनेट। जुडिशियल पावर्स, सेनेट कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट के तौर पे एक्ट करती है प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ द यूएस। द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट आर प्रेफर्ड बाय द हाउस, जैसे कि अभी एज ऑफ ईयर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो हाउस में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें हाउस ने उसको इम्पीच किया है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ कन्विक्शन आर टू बी कंडक्टेड इन द सेनेट, मगर कन्विक्ट करके उस कन्विक्शन हमेशा सेनेट करती है उसकी। प्रोसीडिंग्स आर हेड बाय द कमेटी ऑफ जुडिशरी, सेनेट की डिफरेंट कमेटीज हैं, उनमें जो कमेटी ऑफ जुडिशरी है वो उसको हेड करती है, विच इज प्रेजाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठता है सेनेट में आके और कमेटी ऑफ जुडिशरी उस प्रोसीडिंग्स को सुनती है, प्रेसिडेंट अपने आप को टेस्टिफाई करता है, जवाब देता है, विटनेसेस बुलाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल इज दैट एंड्रयू जॉनसन एंड बिल क्लिंटन हिस्टोरिकली वर इम्पीच्ड बाय द हाउस, बट सेनेट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया था, क्विट कर दिया था। एज ऑफ येट अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हाउस ने इम्पीच कर दिया उसे, मगर उसकी कन्विक्शन अभी तक इट्स गोइंग टू बी सीन दैट व्हाट सेनेट डज। Most likely it will fail because you need a lot of defectors from Republicans for that to happen, which is unlikely. Again, Senate के पास judicial patronage है कि जितनी presidential nominations हैं judges of federal judiciary and Supreme Court, they are subject to Senate's approval, तो ये judicial patronage Senate के पास भी है। Constitutional amendments, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ अमेंडमेंट्स प्रपोजल की पावर्स सेनेट के पास भी मौजूद हैं। ये प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इधर भी कांग्रेस इधर भी सेनेट का रोल है और यहाँ पर भी सेनेट का रोल है। तो ये प्रोसेस की डेप्थ में जाए बगैर हम अगर आप सिर्फ अभी इसमें इतना लिखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में भी सिर्फ हाउस यूनिलैटरली नहीं कर सकता, सेनेट के पास की अप्रूवल जरूरी है और सेनेट अमेंडमेंट्स प्रपोज भी कर सकता है, दैट शुड बी इनफ। द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इज अ ह्यूज पावर इन्वेस्टेड इन सेनेट। दे हैव अ राइट टू डिमांड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। दे सर्व एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द अमेरिकन पब्लिक। और ये आइडिया जो है जो अमेरिकन सिस्टम को मेडिसोनियन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जेम्स मेडिसन ने फेडरलिस्ट पेपर्स लिखे थे जिनकी बेसिस पे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। तो इन फेडरलिस्ट 51 ही आर्ग्यूड दैट इन फ्रेमिंग अ गवर्नमेंट व्हिच इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मेन ओवर मेन, यू मस्ट फर्स्ट इनेबल द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द गवर्नड एंड इन द नेक्स्ट प्लेस ओब्लाइज इट टू कंट्रोल इटसेल्फ। यानी कि गवर्नमेंट को सेल्फ कंट्रोल बनाना है कि अगर वो बाकियों को अकाउंटेबल ठहरा सके लोगों को, तो अपने आप को भी अकाउंटेबल ठहरा सके। और सेनेट की इन्वेस्टिगेशंस का जो प्रोसेस है, जो कमेटीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेट करती हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल के तहत है। जैसे वाटरगेट कमेटी बनाई गई जिसने वाटरगेट स्कैंडल को पूरा इन्वेस्टिगेट किया, इरान कॉन्ट्रा हेयरिंग्स की गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ बनाई गई। आप दूसरी इन्वेस्टिगेशन कमेटीज़ भी देखते हैं, ये तो हो गई जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट किया।
दूसरी जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ भी सेनेट की हियरिंग्स होती हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग की फॉर इंस्टेंस हियरिंग हुई थी ऑन डेटा प्राइवेसी और कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के ऊपर. दैट इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो कोट. दुनिया में जनरली अपर हाउसेज में इन्वेस्टिगेटिव कमेटीज होती हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद है, मगर वो इतनी फंक्शनल और इतनी पावरफुल नहीं है. यूएस सेनेटर्स अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यूएस के केस में. ये व्हाट मेक्स यूएस सेनेट इज द मोस्ट पावरफुल अपर चेंबर इन द वर्ल्ड. जैसे हमने भी डिस्कस किया कि यूएस सेनेट ही वो वाहिद चेंबर है दुनिया में जो अपने लोअर हाउस से ज़्यादा पावरफुल है. देयर आर मल्टीपल रीजंस, क्योंकि आर्ग्यूबली इट इज़ प्रॉब्ली दी ओनली ऑर्गन विद सम डायरेक्ट एग्जेक्टिव पावर्स. वो अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए प्रेसिडेंट की जितने डिसीजंस होते हैं उनको रेटिफाई करके या नॉन रेटिफिकेशन करके डायरेक्टली सेनेट कंट्रोल्स द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. इसी तरह कोई फॉरेन ट्रीटी यूनिलैटरली कंक्लूड नहीं हो सकती बिकॉज रेटिफिकेशन चाहिए होती है सेनेट की, जिस तरह हमने डिस्कस किया. तो इस तरीके से ना सिर्फ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि एक्सटर्नल पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है सेनेट. इसके मुकाबले में ऐसी पावर्स, एग्जेक्टिव पावर्स पाकिस्तान इंडिया में मौजूद नहीं है. ये कंपैरिजन भी अगर आप साथ साथ ड्रॉ करें तो इट विल गिव यू एडिशनल मार्क्स. देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अमूमी तौर पे लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और जाता है. लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है और हर एक का अपना अपना चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ऑपरेट करता है, तो सेनेट हाउस से ज़्यादा कंपेरिज पावरफुल है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में लोअर हाउस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करता है, अकाउंटेबल भी ठहराता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज बोथ पार्ट एंड आंसरेबल टू लेजिस्लेचर. तो लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में बन जाता है. Their system of checks and balances. Framers of the Constitution devised Senate as an active check both on lower house and other organs, executive and judiciary. They have smaller membership and long tenure. Senate का साइज छोटा है, 100 मेंबर्स हैं और 6 साल की उनकी टर्म है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 435 मेंबर्स हैं और 2 साल की सिर्फ टर्म होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में. तो छोटी मेंबरशिप और लॉन्ग टेन्योर का मतलब है कि अपना काम ज़्यादा सिक्योर तरीके से, ज़्यादा आसानी तरीके से और ज़्यादा असर्टिव तरीके से कर सकते हो. लोअर हाउस वाले अपने री इलेक्शन के चक्कर में ही लगे रह जाते हैं. जो मेंबरशिप है सेनेट की यूएस के अंदर, दैट कंसिस्ट ऑफ सीनियर पॉलिटिशियंस, जो लीगल लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज और वाइडर नॉलेज वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर सेनेट के लिए एस्पायर करते हैं. Hence, Senate becomes superior to the lower courts in intellectual quality, legal talent, and political wisdom. Robert Byrd of Democrats has been the longest-serving U.S. senators from West Virginia for over 51 years. चूँकि इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बाकी दुनिया में जो अपर हाउसेज हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती हैं, तो उनके पास इतनी इलेक्टोरल लेजिटिमेसी नहीं होती जितनी यूएस सेनेटर्स के पास होती हैं. उनमें आपस में सॉलिडारिटी भी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज सेनेटोरियल कर्टसी का प्रिंसिपल है. जब एफडीआर ने बाईपास करने की कोशिश की सेनेटोरियल कर्टसी को 1938, तो जो उसके अपने पार्टी के डेमोक्रेटिक सेनेटर्स थे वो उसके खिलाफ खड़े हुए. Hence, Senate acts as a one block. अमेंडमेंट किसी भी किस्म की प्रपोज कर सकती है यूएस सेनेट. जर्मेन यानी जो रेलेवेंट है टू द लॉ, एंड नॉन जर्मेन यानी कि बिल अगर मनी बिल है, यूएस सेनेट के पास ये भी पावर है कि वो उसमें मनी बिल के अंदर हेल्थ की बात शुरू कर दे. अगर हेल्थ का बिल है तो यूएस सेनेट के पास है कि वो अमेंडमेंट को एजुकेशन, यूएस सेनेट के पास ये भी पावर है कि वो उसमें मनी बिल के अंदर हेल्थ की बात शुरू कर दे. अगर हेल्थ का बिल है तो यूएस सेनेट के पास है कि वो अमेंडमेंट को एजुकेशन की कर दे. दुनिया में सेनेट्स में ऐसा अलाउ नहीं होता, पाकिस्तान में सिर्फ जर्मेन अमेंडमेंट्स पास करने का राइट है. विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन नेक्स्ट टाइम. आई विल सी यू नेक्स्ट. Welcome everyone, we're going to continue with our discussion that we had last time. तो हम डिस्कस कर रहे थे अमेंडमेंट मेकिंग पावर के ऊपर. तो जर्मेन अमेंडमेंट वो होती है जो बिल जिस मकसद के लिए पेश हुआ है उससे रेलेवेंट हो. जर्मेन मींस रेलेवेंट बेसिकली. तो अगर फॉर इंस्टेंस हेल्थ केयर का बिल है तो उसमें अमेंडमेंट हेल्थ केयर की हो, ये जर्मेन अमेंडमेंट्स हैं. नॉन जर्मेन अमेंडमेंट्स हैं कि आप उसमें इरेलेवेंट उस बिल से ताल्लुक जिनका नहीं है उनको भी ऐड करना शुरू कर दो. तो बेसिकली जब हाउस ने एक बिल पास किया और वो सेनेट के पास गया, पाकिस्तान में ये रूल है कि हाउस के बाद जब नेशनल असेंबली के पास सेनेट में बिल जाता है
तो सेनेट उसके अंदर फॉर इंस्टेंस अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है, उस बिल में चेंजेस करना चाहती है बिफोर पासिंग इट एंड रीसेंडिंग इट बैक टू नेशनल असेंबली, they have to pass only the germane amendments which are relevant amendments to that bill. तो हेल्थ केयर के बिल में वो एजुकेशन की कोई चीज क्लॉज ऐड नहीं कर सकते. यूएस के अंदर सेनेट के पास पावर है, वो किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सकती है. हाउस की किसी भी किस्म का बिल उसके पास आया, दे कैन ऐड एनी सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट. और जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि इवन मनी बिल्स के अंदर भी वो टाइटल ऑफ द बिल चेंज किए बगैर नीचे पूरा का पूरा बिल बदल सकती है. वो ऑब्वियसली फिर उसका नेक्स्ट मैकेनिज्म अपना है कि फिर वो कॉन्फ्रेंस कमेटी में जाएगा एंड देन दे विल रिजॉल्व के बिल की सूरत क्या होनी चाहिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है इन यूएस. फिलिबस्टर, फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली बहुत ज़्यादा यूएस सेनेटर्स के पास. सेनेटर्स हैव द राइट टू गो ऑन स्पीकिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है, ये दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल के देयर शुड बी फुल लेंथ डिबेट ऑन एवरी मैटर इन सेनेट, कि मुकम्मल डेप्थ में डिबेट होनी चाहिए. मगर इसको मिसयूज बहुत हिस्टोरिकली किया जाता रहा और इस चीज़ को फिलिबस्टर कहते हैं. बेसिकली ये टैक्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं बहुत सारे सेनेटर्स टू डिले और इंटायरली प्रिवेंट अ वोट ऑन बिल बाय एक्सटेंडिंग डिबेट ऑन द मैटर. फॉर इंस्टेंस कि अगर डेमोक्रेट्स ने कोई बिल पेश किया या कोई बिल हाउस से अप्रूव होके आया सेनेट में, तो डेमोक्रेट्स का वो बिल है, तो सेनेटर जो रिपब्लिकन का है तो वो फ्लोर पे जाएगा और उस पर तकरीर करता रहेगा ताकि इस पे वोटिंग ना हो सके, ताकि ये बिल पे भी वोट ही ना हो और एग्जॉस्ट होकर ये बिल ख़त्म हो जाए और लोग इस पे वोट ना करें. तो ये बेसिकली है उस और इसको इस पर कोई लिमिटेशन जनरली नहीं हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती थी. तो कोई रूल नहीं था कि आप सेनेटर को रोक सकते हैं बोलने से. तो सेनेटर्स वुड स्टार्ट डिस्कसिंग दैट बिल, जिन्होंने उन्हें उसे अपोज करना है उस पर वोट नहीं होने देना, और उसके बाद वो अपनी टेलीफोन डायरेक्टरीज पढ़ना शुरू कर देंगे, कुकिंग बुक्स से रेसिपीज पढ़ना शुरू कर देंगे, स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे. इट्स वाज एज अ डिलेइंग टैक्टिक. द record of longest individual speech goes to South Carolina's J. Strom Thurmond, who filibustered for 24 hours and 18 minutes against the Civil Rights Act of 1957. 1917 में रूल 22 अडॉप्ट किया गया था. ये बाय द वे 1857. I think you got to cross check this. I think this is 1857, but I have to cross check that as well. In 1917, senators adopted a Rule 22 of the Senate rules that allowed the Senate to end a debate with a 2/3 majority vote, with a device which was known as cloture. इस प्रिंसिपल के तहत बेसिकली ये था कि अगर कोई बंदा डिबेट करी जा रहा है डिले, तो 2/3 ऑफ सेनेटर्स कुड वोट एंड एंड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सब्सिक्वेंटली ताकि उस पर वोट हो सके. Filibusters were particularly useful to southern senators who sought to block civil rights legislation until this policy was invoked after 60-day filibuster against Civil Rights Act of 1964. Yes, ये 1957 है. 1964 के अंदर 60 डे यानी मुख्तलिफ सेनेटर्स ने बार बार सदर्न सेनेटर्स जो थे उन्होंने बार सिविल राइट्स बिल को डिले करने के लिए 60 डे तक फिलिबस्टर किया until 2/3 of the Senate voted against it and then it was stopped. In 1975, the Senate reduced the amount of votes required from 2/3 to 3/5. तो यानी कि अब पहले से कम सेनेटर्स चाहिए, पहले ज़्यादा सेनेटर्स, पहले 2/3 is 66 or 67 senators, so they have been reduced to 60 senators out of 100 senators ताकि ये फिलिबस्टर की टेक्निक एक्सप्लॉइट ना हो सके. दिस इज अ वेरी फेमस थिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. पॉप कल्चर में भी मिस्टर स्मिथ गोज टू वॉशिंगटन इज अ वेरी फेमस क्लासिकल मूवी इन विच फिलिबस्टर टेक्निक इज एम्प्लॉयड. जिस तरह हमने पहले बात की कि दुनिया में जो स्टेट्स हैं सेनेटर्स हैं वो सेनेटर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सेनेटर्स जो जबकि जो लोअर हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो छोटे फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यूएस के अंदर भी जो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो छोटा होता है क्योंकि एक वर्जीनिया से या न्यूयॉर्क से देयर आर probably 27 congressional districts in California. तो मतलब 27 different हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, जबकि यूएस सेनेट में पूरी की पूरी कैलिफोर्निया स्टेट से 2 सेनेटर्स आ रहे हैं. तो वो ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सेनेटर्स. हेंस दे हैव ग्रेटर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड दे ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ देयर स्टेट्स. तो ये बेसिकली यूएस सेनेट की इनॉर्मस
अनवाइड पावर्स हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल एनालिसिस अगेन वही है कि किस तरीके से पॉलिटिकल डेडलॉक्स बनते हैं, गवर्नमेंट शटडाउन की जो मैंने आपको बात की, कितनी चीज़ें डिले हो जाती हैं, फिलिबस्टर की टेक्निक कितनी इस्तेमाल होती है, पार्टिजनशिप कांग्रेस में बहुत बड़ी है ओवर द टाइम के इस पावर की वजह से सेनेट, जिस पार्टी के पास सेनेट का कंट्रोल होता है वो फिर अपनी मर्जी से चीज़ें करती हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम मोर इफेक्टिवली और किस तरीके से कांग्रेस का क्या रोल है, आई रोट अ पीस a year, 2 years ago, and this is the title of that piece. It was published online in the blog, so you can just Google. I will also get it attached in the description box, but even if I don't, this is the title of the article that clearly एक बड़ा analytical उसके अंदर depth में जाके I have explained that what are the powers of the that constitution has given to Senate and Congress and why they have given that power and how certain times Congress failed to use that power effectively for the benefit of the United States. तो ये 2-3 aspects आप basically लिख सकते हैं critical analysis के अंदर. This is the link of that article in the Nation. I hope this lecture helped you and I'll see you guys next time. Assalamu alaikum everyone, welcome back to the Political Science Paper 2 lecture series on Napier. And today we're going to talk about judicial review. Judicial review का सवाल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आ चुका है पास पेपर्स में, जैसे कि simply explain the doctrine of judicial review. What is judicial review? Discuss its impact on US decision making process. Or write a comprehensive note on the power of judicial review and its limits in the context of Pakistan. This is what we're going to do in this video. This is what we're going to do in the next video. And this is what we'll do when we'll do the system of Pakistan later. Judicial review is the process whereby an apex court, apex means top court, Supreme Court generally, interprets a law and determines its constitutional status. If the judiciary finds that a given piece of legislation is in conflict with any provision of the constitution, it may strike down the same. Basically again, checks and balances का system को अपने जहन में लेकर आएं और फिर उसके context में उसको समझने की कोशिश करें. तो चूंकि judiciary guardian of the constitution है, they are also the interpreters of the constitution. So when a piece of legislation is passed by the parliament or the congress, तो जुडिशरी के पास इख्तियार है कि वो चेक करे कि क्या ये जो लेजिस्लेशन पास हुई है ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन को वायलेट तो नहीं करी, कि कल को पार्लियामेंट ये डिसाइड करे कि 3% ऑफ द पॉपुलेशन को हमने रैंडमली किल कर देना है टू सेव फॉर इंस्टेंस आवर रिसोर्सेज, या हमने इस माइनॉरिटी को कत्ल कर देना है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. शुड दैट बी अलाउड इन अ डेमोक्रेसी? बिकॉज डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के तहत तो मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया, क्योंकि मेजॉरिटी की विल को रिफ्लेक्ट करती है पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया तो उसको किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती. हाउएवर इन द डेमोक्रेसी की ट्रू एसेंस आपने कुछ पॉपुलर विम्स पे, मेजॉरिटेरियन इम्पल्सेस पे ब्रेक्स लगानी होती हैं. दैट इज वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस, कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके कॉन्सोनेंस में सारी चीजें होंगी. नथिंग कैन बी अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो. अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस जनरली इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस. प्लीज रेफर टू द अर्लियर वीडियो एंड पोल साइब 1 लेक्चर्स रिगार्डिंग फेडरलिज्म, जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की थी. तो इसके तहत बेसिकली फिर यही आइडिया है कि बहुत सारे ऐसे कवानीन होते हैं, फिर उनको टेस्ट किया जाता है कि वेदर दे वायलेट और डू दे नॉट वायलेट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो अगर जुडिशरी को ये लगे, सुप्रीम कोर्ट को, कि कोई लॉ पार्लियामेंट ने या कांग्रेस ने पास कर दिया है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है. दैट इज व्हाट जुडिशियल रिव्यू इज अबाउट. For example, if US Congress were to pass a law banning newspapers from printing certain information, courts would have the authority to rule that the law violates the First Amendment, which is the right of free speech in US. It is therefore unconstitutional and invalid. Ultra vires basically यही होता है कि without legal effect. Ultra vires outside legal effect. It's void. तो यही है कि जब कोर्ट डिसाइड करती है कि ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन या कोई एग्जेक्टिव एक्शन, एग्जेक्टिव ने भी कोई अथॉरिटी या कोई रूल पास किया, एग्जेक्टिव ने कोई डायरेक्शन दी है, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है,
किसी डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा इशू ऑर्डर किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अल्ट्रा वायरीज कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में है, तो ये विदाउट लीगल इफेक्ट, इसकी कोई हैसियत नहीं। अब दो तरह के अल्ट्रा वायरीज हो सकते हैं, वन इज द सब्सटैंटिव एंड द सेकंड इज प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरीज इज द सिचुएशन वेयर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इनैक्ट लॉज और रूल्स फॉर विच दैट दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट, यानी जब लॉ ने किसी एग्जीक्यूटिव को ये इख्तियार ही नहीं दिया वो कुछ करने को, तो वो जब करते हैं तो वो सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरीज है। प्रोसीजर अल्ट्रा वायरीज है कि अथॉरिटीज फेल टू फॉलो द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स टू डू समथिंग। सो फॉर इंस्टेंस के प्रोसीजर अल्ट्रा वायरीज, फॉर इंस्टेंस जब आप प्रोक्योरमेंट करते हो किसी चीज़ की गवर्नमेंट में, तो प्रोक्योरमेंट के पूरे रूल्स हैं कि आपने उनको फॉलो करने हैं, जो कि पेपरा रूल्स जिनको कहा जाता है, उनके तहत प्रोक्योरमेंट की जाती है। प्रोसीजर्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो हमारे बहुत सारे जो नैब के मुकदमात अभी चल रहे हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, वो प्रोसीजर्स को फॉलो ना करने पे हैं, खास तौर पे प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स को फॉलो ना करने के ऊपर। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये बात हो गई। इसके बाद ये बेसिकली जो आइडिया था जुडिशल रिव्यू का, ये जॉन मार्शल की जो जजमेंट थी मैरबरी वर्सेस मैडिसन, उसमें सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था, जिसके अंदर ही रोट दैट एन एक्ट ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज void. Now what is the scope and limitation of judicial review? कुछ limitation है judicial review पे, यानी it's not an absolute power of the court. Judges can only review laws or other governmental acts that are challenged in court. यानी कि जब तक कोई डिसीजन चैलेंज नहीं होता कोर्ट में, तब तक जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन पाकिस्तान एंड इंडिया जहां पर सुओ मोटो पावर है कोर्ट के पास। लेकिन यूएस में फॉर इंस्टेंस सुओ मोटो पावर कोर्ट के पास नहीं है, तो कोई अगर ऐसा लॉ पास हुआ है तो किसी को पिटिशन लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट खुद टीवी पे देख के नहीं डिसाइड कर सकती कि वो हमने देखा ये कानून पास हुआ है तो हम अब इस पे फैसला सुनेंगे। Once a ruling is made, judges must rely on other branches of government to enforce them. क्योंकि जजेस खुद जाके तो enforce नहीं करते, तो judges rely on other branches to enforce them, तो ये एक किस्म की limitation है उसकी। The role of court is not to make the decision being challenged, remake the decision being challenged, but to conduct a review of the decision to assess whether the decision was flawed and should be revoked. कोर्ट ने ये नहीं करना कि खुद कानून पास करना शुरू कर दे कि उसके पास कोई कानून आया तो कोर्ट कहे नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी जगह ये करें। कोर्ट ने सिर्फ रिव्यू करना है कि ये जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, क्योंकि ताकि कोई किसी की डोमेन में ट्रांसग्रेस ना करे। डिफरेंट कंट्रीज में इसका डिफरेंट स्कोप है, लिमिटेशंस हमने डिस्कस कर ली। स्कोप जुडिशियल रिव्यूज इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट। यूके में जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन एंड यूनिटरी इन कैरेक्टर, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कोडिफाइड और सारी पावर्स यूनिटरी सिस्टम है, तो सारी पावर सेंटर में है, तो पार्लियामेंट इज ऑल पावरफुल। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही कोडिफाइड नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसके अगेंस्ट आप चेक करेंगे? तो हेंस कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इन अदर वर्ड्स जुडिशियल रिव्यू की पावर एज सच यूके में एग्जिस्ट नहीं करती विद द कोर्ट्स। यूएसए जहां पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय कांग्रेस इफ इट फाइंड द सेम टू बी इनकम्पैटिबल विद कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, मैरबरी वर्सेस मैडिसन, रो वर्सेस वेड, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सिटीजंस यूनाइटेड वर्सेस फेडरल इलेक्शन कमीशन, ये सारे के सारे यूएस के जुडिशियल रिव्यू के इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो वो आप एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर जो ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं जुडिशियल रिव्यू करती, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज चेक करने के लिए एक पूरी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई हुई है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर जुडिशियल रिव्यू। दे कैन स्ट्राइक डाउन बोथ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बना हुआ है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करने के लिए पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश करती है और वो अमेंडमेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्शन में है तो वो भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। यानी जर्मनी में बहुत वास्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर है, क्योंकि दो चीजें हैं, एक चीज तो है चेक करना कि जो आम लेजिस्लेशन है, रेगुलर लेजिस्लेशन है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा, और एक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की जा रही है पार्लियामेंट में क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रही। तो जर्मनी में दोनों ही कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इंडिया में देयर हैज बीन अ लॉन्ग टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। The 24th Amendment in 1971 authorized Parliament to amend any provision of the Constitution. लेकिन इंडिया के अंदर ओवर टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया है जुडिशरी ने। बेसिकली उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड थ्रू अमेंडमेंट्स बाय द पार्लियामेंट। तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन
इंडियन जुडिशरी ने इवॉल्व किया एंड इट हैज़ बिकम वेरी पावरफुल. केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला basically was the case where the basic structure doctrine was first enunciated by the Indian judiciary. उसके तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका जिसमें उसका फेडरल कैरेक्टर है, उसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, उसका सेक्युलर कैरेक्टर है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कि ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनको पार्लियामेंट नहीं छेड़ सकती. तो टेक्निकली वो जुडिशियल रिव्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग एक एग्जिस्ट करता है वहाँ पे. पाकिस्तान में भी चूंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है दैट लिमिट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. Article 8, for instance, itself provides limit that no law can be made which is in conflict with the fundamental rights. Article 227 says that no law can be made which is repugnant to the injunctions of Islam. तो judicial review इन grounds पे exist करता है. पाकिस्तान constitution itself in a way a power दे रहा है judiciary को. मेथड ऑफ जुडिशियल रिव्यू पाकिस्तान में जो फॉलो होता है वो आर्टिकल 199 जिसके अंदर रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या आर्टिकल 184(3 जो कि सो मोटो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तहत एक्सरसाइज की जाती हैं. इनकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे जब हम पाकिस्तान का सिस्टम कवर करेंगे. नाउ व्हाट आर रिट जुरिस्डिक्शंस? रिट बेसिकली कोर्ट के अंदर जाती है, कोर्ट बेसिकली उस पर फिर अपनी जुडिशियल रिव्यू की ये 5 तरीके हैं किस्म के writs. The first is the writ of mandamus. Writ of mandamus is basically a command issued to a public authority to do a certain act which he is bound to do. तो फॉर इंस्टेंस अगर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर 4 साल बाद सेंसस कंडक्ट करवाए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट सेंसस एवरी 4 years. I'm not sure exactly कितना है हमारे, लेकिन hypothetically let's say 4 years. If the government does not do it, the court has the power under writ of mandamus to issue that direction to government to fulfill its constitutional obligation. To do something. Mandamus यानी उसके mandate करना कि ये काम करे अपना. The second is the writ of prohibition. ये उसका उल्टा है कि वो काम जिसके आपको मना किया गया है, जो जिसकी आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो वो आप ना करें. It is a command issued to a public authority to refrain from doing anything which he is not permitted by law to do so. तो जिस तरीके से अगर एग्जीक्यूटिव जो आपका तहसील ऑफिसर है कोई जो कि म्यूनिसिपल सर्विसेज से रिलेटेड है, जिसका काम मोहल्ले की सफाई करवाना है, वो ये नहीं कर सकता कि बंदे उठा कर जेल में बंद कर दे, क्योंकि ही इज नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू डू दैट. ये उसकी पावर से, स्कोप से बाहर है. तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन, prohibition करना, don't do what is beyond your powers, which is beyond your jurisdiction by law. The third is the writ of certiorari. Certiorari basically seeks judicial review of a decision of a lower court. ये basically higher courts lower courts के decision को देखती हैं कि क्या जो lower courts ने decision पास किया है वो ठीक डिसीजन पास किया, वो लीगल डिसीजन ठीक है कि नहीं ठीक. अगर वो लोअर कोर्ट्स का डिसीजन नहीं ठीक तो वो उसे अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर कर देते हैं. इट्स अ पावर ऑफ डायरेक्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो यानी कि फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ सेशन कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया है और उसके खिलाफ अगर उसके रिट ऑफ सर्टियोराई होती है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट देखती है कि क्या जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो ठीक दिया है, सारे प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं, एविडेंस ठीक कलेक्ट किया गया है, सारी चीज़ें ठीक थी. तो अगर नहीं ठीक थी तो फिर वो उसे उसकी जजमेंट को रिवर्स कर सकती है. Then there is writ of habeas corpus. It's basically the order of the court to deliver an imprisoned individual to the court and show valid reason for that person's detention. Basically ये आइडिया है कि किसी भी बंदे को arbitrarily डिटेन नहीं किया जा सकता. मुआशरे में कोई भी बंदा अगर रियासत ने किसी को उठाया है तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए. विद इन पाकिस्तान में जैसे है कि 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर जिस भी बंदे को अरेस्ट किया उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, ताकि आप मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर सके पुलिस के इसके हमें ये लग रहा है कि ये मसला है. फिर मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इस बंदे को गलत उठाया गया है और पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं है टू बिगिन विद, तो फिर मजिस्ट्रेट उसको उस बंदे को रिहा कर सकता है. लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ठीक उठाया तो फिर वो एविडेंस कलेक्शन के लिए फिर उसकी 14 डेज तक, अप टू 14 डेज उसकी डिटेंशन पुलिस रिमांड पे उसको दे सकते हैं. आफ्टर दैट उसको जुडिशियल रिमांड पे शिफ्ट करना होता है. बेसिकली कि इलीगली किसी को डिटेन ना किया जाए, आर्बिट्रेरीली किसी को डिटेन ना किया जाए. तो स्टेट की पावर को लिमिट करती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कि स्टेट फंक्शनरीज अगर किसी बंदे को बंद करती हैं, जेल करती हैं, इम्प्रिजन करती हैं, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश किया जाए ताकि स्टेट अथॉरिटीज़ ये साबित कर सकें कि हमने इस बंदे को आर्बिट्रेरीली नहीं उठाया. अगर उठाया आर्बिट्रेरीली तो कोर्ट फिर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के तहत
डायरेक्ट कर सकती है उस बंदे को, स्टेट एजेंसीज को, इस बंदे को छोड़ा जाए. Then there is writ of quo warranto that requires a person holding a public office to show under what authority of law he claims to hold that office. कि किस अथॉरिटी के तहत आप जो हो ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, किस नोटिफिकेशन के तहत, किस लीगल सैंक्शन के तहत आपको ये ऑफिस जो है वो मिला है, किसके तहत आपने ये डायरेक्शंस इशू किए हैं. तो ये जनरली जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल्स हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू वेलकम बैक टू द पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज ऑन नेपियर एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द जुडिशियल रिव्यू in the context of the US. These are two important questions historically जो के past papers में आ चुके हैं. What is judicial review? Discuss its impact on US decision making process. Examine the role of Supreme Court in the evolution of the American Constitution. तो हम इनको इसके context में इनको discuss करते हैं. हमने last time पढ़ा था कि judicial review क्या है, ये हम पहले कर चुके हैं. अब decision making जब ये बात आती है कि डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन यूएस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जुडिशियल से किया है, तो उसमें पहले डिफाइन करना जरूरी है डिसीजन मेकिंग क्या है. डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस. द प्रेसिडेंट, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स, ऑल ऑफ दीज एंटिटीज इंटरैक्ट टू मेक political decisions in the US. Since various branches work on the principle of checks and balances, any changes in the powers of one organ affect the overall interaction of all other organs. This in turn affects the decision making, which is the interaction of all these organs. क्योंकि डिसीजन मेकिंग इन सब ऑर्गन्स के इंटरेक्शन से निकल रही है कि अल्टीमेटली क्या पॉलिसीज पास होती हैं, लोगों पे उनका इम्पैक्ट, इन लोग की पावर्स ये लोग कैसे एक्सरसाइज करते हैं उससे डिटरमिन होता है. तो ऑटोमेटिकली अगर जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करती है तो डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करती है. कैसे करती है, शुरू कहाँ से हुआ, ये हम अभी देखेंगे. ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था. एक्सपेंशन इन द जुडिशियल पावर. जुडिशियल रिव्यू ने बेसिकली डिसीजन मेकिंग को इस तरह इम्पैक्ट किया कि सबसे पहले तो उसने जुडिशरी की पावर को इन्हांस किया. तो ये शुरू किस तरह हुआ कि मैरबरी वर्सेस मैडिसन में जुडिशियल रिव्यू की पावर सबसे पहले established हुई. It enabled the Supreme Court to become the guardian of the Constitution, and ever since judicial review has been used very frequently. By 1937, as an empirical evidence, the Supreme Court had declared ultra vires, which means null and void, without legal effect, some 70 federal laws and 300 state laws. तो इतने ज़्यादा डिसीजंस को पार्लियामेंट के कोर्ट इनवैलिडेट कर चुकी थी. तो काफ़ी जुडिशरी की पावर इस तरीके से इन्हांस की है. बट ऑटोमेटिकली मीन्स के डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो रही है. मतलब उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जजमेंट में नहीं जा रहे, मगर मतलब उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल जुडिशियल रिव्यू का है. इज अ कोटेशन दैट यू कैन राइट एट दिस टॉपिक. इसी तरह जिस तरह जुडिशियल रिव्यू ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि हमने ये भी इन दोनों का तकरीबन एक ही किस्म का नुआंसेस होंगी कि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह सुप्रीम कोर्ट करती है, इंटरप्रिटेशन के जरिए ही. जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करते ही उसकी इवोल्यूशन करेगी, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन मीन नाउ, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस से डिटरमिन करेगी. तो जैसे उसने जुडिशियल रिव्यू ने के जरिए जुडिशरी ने अपनी पावर्स को इन्हांस किया, उसी तरह उसने एग्जीक्यूटिव की पावर्स को भी काफ़ी इन्हांस किया है. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट के पास पहले से मौजूद नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली इन्विजेज नहीं की थी, मगर उन पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट था या क्लियर नहीं था. तो कांग्रेस ने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम या जुडिशरी ने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो पावर्स प्रेसिडेंट के पास दे दी. तो बेसिकली ये जुडिशियल रिव्यू के जरिए हुआ. This is called the doctrine of implied powers. Doctrine of implied powers is basically कि फॉर इंस्टेंस मुझे जिम्मेदारी देती है कि इस मोहल्ले की सफाई करवाओ, मगर मुझे कोई ये मैं तब तक मोहल्ले की सफाई नहीं करवा सकता जब तक मुझे लोगों को सजा देने की पावर नहीं है कि अगर वो गंद फैलाते हैं. तो if I am given the responsibility to do something, I must also have the power to exercise the means to enforce that. तो doctrine of implied powers इसीलिए है कि these are the powers which are not directly executive by constitution, but which are considered necessary and proper to execute the powers which are directly conferred by the constitution. तो जो जिम्मेदारी आपको दी गई उसको execute करने के लिए जो powers करने उन्हें implied powers कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपहोल्ड किया है. इसी के जरिए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर दी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट था, कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव ऑल फेडरल ऑफिशियल्स. अपॉइंटमेंट में उसको सेनेट की मर्जी चाहिए, रिमूवल में नहीं चाहिए.
वॉर कांग्रेस करेगी डिक्लेयर, लेकिन प्रेसिडेंट वो उसे टर्मिनेट कर सकता है यूनिलैटरली कभी भी। ये वेस्ट कोस्ट होटल वर्सेस पारिश के डिसीजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि स्टेट ने जो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन पास की है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। इससे पहले जुडिशियल रिव्यू के जो था उसके अंदर जो विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द लॉकनर एरा, दिस वाज अ पीरियड इन अमेरिकन लीगल हिस्ट्री जिसमें सुप्रीम कोर्ट टेंडेड टू इनवैलिडेट लेजिस्लेशन एम्ड एट रेगुलेटिंग बिजनेस। तो जो जुडिशियल रिव्यू लॉकनर एरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किया वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को तब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह इंटरप्रेट किया कि चूंकि फ्री मार्केट सिस्टम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, इसलिए गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो बिजनेसेस को रेगुलेट करे कि जी ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस आपने लाजमी पूरी करनी है, इतनी मिनिमम वेजेस आपने देनी है, चाइल्ड लेबर आपने अबॉलिश करनी है। तो मतलब लिमिटेशन नहीं लगा सकती थी गवर्नमेंट ऑन बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, the way Supreme Court interpreted Constitution back then in the context of property rights, जो कि Constitution में। मगर बाद में Constitution को liberally interpret किया जुडिशरी ने इस जजमेंट के जरिए, और स्टेट के जो मिनिमम वेज लॉज हैं उनको कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके तहत बेसिकली पहली दफ़ा गवर्नमेंट को फिर पावर मिली, एग्जीक्यूटिव को पावर इन्हांस हुई कि वो बिजनेसेस को रेगुलेट कर सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल उनको ये इख्तियार दिया। The power of national government to regulate interstate commerce, railways, telegraphs, airplanes, and radio all owe their origin to the decision of the Supreme Court. They are not envisioned in the Constitution. It enhanced the federal character of Constitution. In effect, by empowering itself, the legislature and the executive beyond what was originally envisioned by the Constitution, तो सारे organs को strengthen किया है technically इसने. Supreme Court has also become the custodian of civil liberties. It is important to note that Supreme Court decisions have shaped the social reality of the American society. कि सोशल चीज़ें या लीगल जो लेजिस्लेटिव चीज़ पूरी चीज़ों को प्रिडेट किया है किस तरीके से अमेरिकन जुडिशरी ने, यानी कि तब तक अमेरिका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होती रही जब तक सुप्रीम कोर्ट ने टॉलरेट किया। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू डिफरेंट केसेस के अंदर ये अपहोल्ड किया कि डिस्क्रिमिनेशन इज लीगल, तब तक डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटर ज़रा लिबरली की और जुडिशियल रिव्यू डिफरेंट तरीके नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तब फिर उसको अबॉलिश कर दिया गया। Discrimination of African Americans sustained as long as the Scottish tolerated it, it ended as soon as the Supreme Court outlawed it. So for instance, Dred Scott Sanford decision में Supreme Court ने itself ये decision दिया कि blacks जो हैं उनको citizenship नहीं मिल सकती, even the freed blacks जो कि पहले slaves थे बाद में free women, citizenship नहीं मिल सकती। In Plessy versus Ferguson सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि जो रेशियली सेग्रीगेटेड अकोमोडेशन और फैसिलिटीज़ हैं कि ये कालों के बैठने की जगह बस में, ये गोरों के बैठने की जगह, ये कालों के खाने की जगह और पीने की ये गोरों के, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसी तरह होना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना नुक्ता नज़र बदला और जुडिशियल रिव्यू लिबरली किया तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सिमिलरली द फॉर्मर बैरियर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वर लिफ्टेड फॉलोइंग द लिबरल कोर्ट रूलिंग्स। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में बेसिकली पब्लिक स्कूल्स की जो सेग्रीगेशन थी वही जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपहोल्ड की थी वो ख़त्म कर दी गई। लविंग वर्सेस वर्जीनिया के अंदर स्टेट लॉज जो कि इंटर रेशियल मैरिजेस अलाउ नहीं करते थे, रजिस्टर नहीं करते थे कि ब्लैक और वाइट अगर आपस में शादी करते थे तो उसको लीगली रिकग्नाइज नहीं करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू में फैसला दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इंटरप्रेट करता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को इवॉल्व किया है। जुडिशियल रिव्यू ने इस तरीके से यूएस की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी इस चीज़ को इम्पैक्ट किया। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। आखिरी चीज़ है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल फिलोसफीज। जुडिशियल रिव्यू का जो पूरा प्रोसेस है आप देखें कि आप खुद भी सोच रहे होंगे फॉर दोज हु डू नॉट हैव एनी लॉ बैकग्राउंड के जुडिशरी कभी जुडिशियल रिव्यू कंजर्वेटिव तरीके से कर लेती है, कभी प्रोग्रेसिव तरीके से कर लेती है। तो ये क्या माजरा है? ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। जुडिशियल रिव्यू इन्वॉल्व्स कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरह इंटरप्रेट करें कि ये लॉ क्या कह रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जुडिशियल और लीगल फिलोसफीज इमर्ज की हैं कि ये तरीका है इंटरप्रिटेशन का या ये तरीका है इंटरप्रिटेशन का।
These judicial philosophies are the ways in which a judge understands and implements the laws. So there are three broad categories of these interpretations. The one is judicial activism. It is in contrast with judicial restraint. The second is loose constructionism versus strict constructionism. The third is living document versus original intent. Judicial activism involves using the bench to enact social and political change. This idea believes that courts should overturn bad laws and create new policies. Basically हमने पाकिस्तान में भी recently ever since Chief Justice इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कोर्ट से देखा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है, कि जुडिशरी ये फील करे कि not only we should just check the constitutionality of laws but we should, हमें लॉ को इतना इंटरप्रेट करना चाहिए ब्रॉडली और अपनी पावर्स को इतना ब्रॉडली इंटरप्रेट करना चाहिए कि हम पब्लिक पॉलिसी चेंज जो हमें लगता है कि सोसाइटी में आना चाहिए वो इनैक्ट करना शुरू कर दें. कि स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा क्यों है, हॉस्पिटल्स में मेयार ऐसा क्यों है, शुगर मिल्स ने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए अपने एम्प्लॉयज़ को, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म की फिलोसफी है. जजेस जो जुडिशियल एक्टिविस्ट हैं वो फिर ओपन इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ की और फिर पब्लिक पॉलिसी की डोमेन में भी स्टेप इन करते हैं और डायरेक्शंस देते हैं गवर्नमेंट को कि ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्टली वो बात नहीं लिखी होती. जुडिशियल रिस्ट्रेंट की फिलोसफी इसके ऊपर ये है कि जजेस मस्ट इंटरप्रेट द लॉ स्ट्रिक्टली रादर देन सीकिंग पब्लिक पॉलिसी चेंज ऑन देयर ओन बाय इंटरप्रेटिंग द लॉ लूजली. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली पावर दिया है कोर्ट को कि वो करे, वो सिर्फ कोर्ट का काम सिर्फ वही करना है, उसको वो लूजली इंटरप्रेट नहीं कर सकते. The second, which again relates to this, is loose constructionism and strict constructionism. Loose constructionism believes that courts should read the constitution expansively, which means कि liberal interpretation होनी चाहिए, and should not limit themselves to what is explicitly stated. Strict constructionists believe that courts should interpret the constitution literally and only follow what is explicitly stated. तो ये जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिस्ट्स हैं ऑटोमेटिकली वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट में बिलीव करेंगे क्योंकि वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे. लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट बेसिकली एक्टिविस्ट होंगे. देन देयर इज दिस फिलॉसफी ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड ओरिजिनल इंटेंट. लिविंग डॉक्यूमेंट इज द फिलॉसफी दैट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ग्रो एंड अडैप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस, व्हिच अगेन ऑफ कोर्स इज थ्रू लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इवॉल्विंग, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, तो आपने उस हिसाब से उसको देखना है. जबकि ओरिजिनल इंटेंट ये कहती है कि कोर्ट शुड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेमर्स हैड इंटेंडेड. इसमें मैं अब आपको केस लॉ के जरिए इसकी मिसाल देता हूँ. जब जो 2000 गालबन 16 में या 15 में जब ये लॉ आया है यूएस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है मैरिज, इक्वल मैरिज राइट्स के ऊपर कि दी होमोसेक्सुअल्स विल आल्सो हैव द राइट टू मैरी. जो लोग लिविंग डॉक्यूमेंट, लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट और जुडिशली एक्टिविस्ट फिलोसफी में बिलीव रखते थे, वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जब राइट टू मैरिज दिया है और राइट टू मैरिज के साथ साथ दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं और वो एडल्टहुड को पहुंच चुके हैं और उनके प्राइवेसी राइट्स हैं, तो स्टेट को एक्सेप्ट करना चाहिए. मैंने बड़ी एक्सपेंसिव सी डेफिनेशन की. जो जजेस समझते थे ओरिजिनल इंटेंट बिकॉज इट वाज अ 5-4 डिसीजन, तो द 4 जजेस हु वर इन माइनॉरिटी who were original intent, strict constructionists and judicially restrained, the most famous one of them being Justice Scalia, they were of the view that जब फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस किया था और मैरिज का राइट दिया था, तो उन्होंने होमोसेक्सुअल्स को ये राइट सोच के नहीं दिया था. दी कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंट में था, जो ओरिजिनल इंटेंट थी फ्रेमर्स की, वो ये नहीं थी कि गेज को राइट हो शादी का. उनकी इंटेंट हेट्रोसेक्सुअल कपल्स की थी, इसीलिए ये राइट नहीं दिया जा सकता. सो आई थिंक दिस क्लैरिफाइड यू कि ये इंटरप्रिटेशंस किस तरीके से वेरी कर सकती हैं. जुडिशियल एक्टिविज्म की एग्जांपल की बात करें तो जो ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन है 1954 में, दैट प्रोहिबिटेड रेशियल सेग्रीगेशन ऑफ पब्लिक स्कूल. लविंग वर्सेस वर्जीनिया में स्टेट लॉज प्रोहिबिटेड इंटर racial marriages are unconstitutional, therefore allowing interracial marriage. Roe versus Wade में अगेन बेसिकली आप ये देखें कि क्वेश्चन था अबॉर्शन के ऊपर. टेक्सास में अबॉर्शन पे पाबंदी थी ख्वातीन के कि वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती थी. सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड में जुडिशियल एक्टिविस्ट, लूज कंस्ट्रक्शनिज्म, लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर इंटरप्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, बिकॉज दे सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू प्रिवेसी है, तो राइट टू प्रिवेसी ऑल्सो एक्सटेंड वुमेन द राइट टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू विद हर बॉडी, बिकॉज दैट्स हर राइट टू प्रिवेसी. हैंस अ वुमेन्स liberty to choose to have an abortion without excessive restriction is part of her privacy rights.
Citizens United versus Federal Election Commission, also a very important case in the context of judicial activism and loose constructionism. Basically, US में lobby groups exist करते हैं और businessmen, big businesses spend a lot of money on the campaign of politicians. और जैसे कहा जाता है कि जो ऑयल कंपनीज हैं, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन बहुत ज़्यादा पैसा देती है, कैंपेन्स पे हटती है ऑन बोथ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, मोर ऑन डेमोक्रेट्स की कैंपेन्स जो भी सेनेटर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स पे भी करते हैं। सो नाउ द आइडिया इज कि चूंकि वो इतना पैसा स्पेंड करते हैं उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स में, देन व्हेन दे गो टू पार्लियामेंट, कांग्रेस, दे मेक लेजिस्लेशन विच आर फेवरेबल टू दोज बिजनेसमैन, विच आर फेवरेबल टू दोज डोनर्स, जिसकी वजह से गन कंट्रोल लॉज यूएस में स्ट्रिक्ट तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते इतने अच्छे, बिकॉज नेशनल राइफल एसोसिएशन ने हर एक को इतना पैसा स्पेंड किया पॉलिटिशियंस की कैंपेन में दैट दे डोंट हैव द स्पाइन और द लेजिटिमेसी टू लेजिस्लेट अगेंस्ट नेशनल राइफल एसोसिएशन। तो इसलिए बेसिकली इसके खिलाफ केस किया, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस मींस दैट कांग्रेस इज नो लॉन्गर रिफ्लेक्टिव ऑफ द पॉपुलर इंटरेस्ट, बट इट रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पॉपुलर ऑफ बिग बिजनेसेस के मनीड एलीट की। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द एलीट कैप्चर और ऑफ द मनीड एलीट, द एलीट कैप्चर ऑफ पॉलिटिक्स। ये पूरा एक पूरी पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक पूरी सिस्टमैटिक स्टडी है इसके ऊपर। तो इस रिजेंटमेंट के अगेंस्ट बेसिकली सिटीजन्स यूनाइटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने केस किया फेडरल इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कि कॉर्पोरेट स्पेंडिंग, ये जो बिग बिजनेसेस और कॉर्पोरेशंस पब्लिक पॉलिटिशियंस की कैंपेन से स्पेंडिंग करती हैं, इसमें एक लिमिटेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी सम कांग्रेशनली इनेक्टेड लिमिटेशन, यानी कांग्रेस को कोई लिमिटेशन इसके ऊपर लगानी चाहिए कि वो इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, ताकि politicians do not become a hostage, क्योंकि जब लिमिट लग जाएगी तो they would not become hostage to these big businesses। मगर सुप्रीम कोर्ट ने लूजली इंटरप्रेट किया उसको, उसने कहा नहीं, स्पेंडिंग मनी ऑफ अ बिजनेसमैन स्पेंडिंग या अ कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल कैंपेन और अ पॉलिटिशियंस कैंपेन इज हिज और हर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उस कंपनी की, उस बिग बिजनेस की वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और चूंकि फ्री स्पीच इज प्रोटेक्टेड इन फर्स्ट अमेंडमेंट, तो कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती कि कोई लॉबी ग्रुप या कोई बिजनेस या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर कितने स्पेंडिंग करता है किसी पॉलिटिशियन की कैंपेन के ऊपर। तो यू कैन सी के जुडिशियल एक्टिविज्म हैज बीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Examples of activist and restraint courts, the Warren Court of 1953 to 69, Chief Justice Warren के अंदर was a champion of judicial activism, loose constructionism, while the Rehnquist Court from 1986 to 2005 was the champion of judicial restraint, यानी generally फैसले इस context में आते थे। Example of activist and restraint courts का क्या impact रहा है, बहुत positive and negative, थोड़ा सा कि इनका क्या फ़ायदा रहा है American Constitution को, तो ये आप एक दफ़ा go through कर लें कि it's more rhetorical कि किस तरीके से सिविल लिबर्टीज इन्हांस हुई हैं, अंडर प्रिविलेज के राइज इन्हांस हुए हैं, फेडरल पावर्स इन्हांस हुई हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा बेहतर हुए हैं, लेकिन वुमेन राइट्स भी रिस्ट्रिक्ट हुए हैं इसकी वजह से, प्रिवेसी राइट्स की बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन हुई है इसके ज़रिए। ये मोनरो की बड़ी फेमस कोटेशन है दैट वन माइट ऑलमोस्ट से दैट कॉन्स्टिट्यूशन अंडरगोज सम चेंज एवरी मंडे व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैंड्स डाउन डिसीजंस। देन आपने इस पर क्रिटिक करनी है कि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जो यूएस में एग्जिस्ट करती है इतनी, उसके ऊपर तो द क्रिटिक इज के पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अनडेमोक्रेटिक, बिकॉज पॉपुलर लेजिस्लेचर को ये डीमोरलाइज कर देते हो आप कांग्रेस को, बिकॉज टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट फिर किसी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। जजेस wield powers greater than public representatives, तो लास्की ने इसके ऊपर कहा था द सुप्रीम कोर्ट हैज assumed the power of a super legislature, कि लेजिस्लेटर से ऊपर एक बन गई हुई है चीज़। There are certain procedural limitations of judicial decision making। देखें, नो टोटल जजेस हैं, यानी 5 out of 4, आपको 5 जजेस चाहिए मेजॉरिटी में। लेट्स से कि 4 जजेस का फैसला एक तरफ है और 4 जजेस का फैसला एक तरफ है, पीछे बचा एक बंदा। नाउ दैट वन पर्सन होल्ड्स वीटो पावर। One judge can stand against the will of the people and popularly elected legislator and his will prevails। तो एक procedural flaw है कि किस तरीके से हम 9 लोगों को ये पावर दे रहे हैं और उसके बीच में भी फिर जब अगर डिस्क्रीमेंट आया, इवन में डिवाइड होगा तो एक बंदे के पास पावर आ जाएगी। To illustrate the point that this again is something that is procedurally not correct, then it acts like a judicial veto। The Supreme Court can declare a law as invalid if it does not appeal to the sense and reason and law of the judges, even if it does not expressly violates a certain provision of the Constitution।
अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेरी इंटरप्रिटेशन है उसको ये लॉ वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इवन दो कि शायद वो डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज ना हो। जैसे कि फेडरल इलेक्शन कमीशन का जो हमने डिसीजन देखा था कि ये कोई डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग वगैरह ये वो चीज़ों पे बात ही नहीं थी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, उनकी सेंस ऑफ लॉ रीजन को अपील नहीं करता था, देन this acts as a veto on the representatives of the people, and it leads to politicization and conservatism as well. Supreme Court has zealously protected property rights to the extent that it has been considered by some as the citadel of vested interest and not bastion of popular liberties. Again, a rhetoric. Historically, Supreme Court has declared laws regarding income tax, minimum wage, and limited hours of work unconstitutional and upheld restraints upon women's rights. तो इन चीज़ों की वजह से basically इस पे ये critique है. I hope this helped. I see you guys next time.